introduction first, like what my journey is all about. It is about the five-pronged approach that when I look backwards, then I find it was a five-pronged approach that we adopted in doing this journey, which was like first is realizing and accepting the situation. That is the first thing that one has to do when one is diagnosed with cancer or any other dreaded disease. So that was the first thing. Then second was adopting and responding to it. People usually react and they don't respond. So I think what the difference was there in my journey was like we, instead of reacting, we responded and adapted our lives according to the situation. The third thing is finding the ways to resolve it. Like how we can resolve the situation in which we were all the time, like the 3 times or during our journey, many times we had experienced a lot of situations. So finding out the ways to resolve it, and then learning the process of resolving and the lessons that the situation taught us. That was the fourth point. And the fifth point, that is the most important point, is implementing the solutions in our daily lives. Whatever we learned, it was not like that we learned and then we just maybe we practice it for a day or two or maybe a week or a month, but adopting it as a daily routine and then moving ahead in our lives. So this 5-pronged approach, I think it helped us a lot, and we could like carry ourselves forward in this journey of ours. Right. Yeah. And also like because we had kept this topic of today as from curing to healing. So just to brief it, like curing is what I believe is, it's like relieving a person from a symptom or a disease through a medical process, medical treatment. That is what we call a cure. And healing is a process of gaining a sound health by holistic approach. So the holistic approach involves body, mind, and soul, all the 3 things together, which are important in the holistic healing. And that is what we learned in our 3.5 years journey, like how we can do that, how we can achieve that. Wow. Okay. So yeah, as we move forward in the evening today, I think I will be able to explain it in a much better way. Definitely. So to ये सब, yes, sorry. Yeah. So जैसे आपने काफी अच्छा फ्रेमवर्क बताया है ये 5-pronged approach, and जो आपने realization से implementing solution तक जो बताया है, and we all go through the similar process. किसी को कभी realization में time लगता है, तो acceptance में time लगता है. So I'm sure कि जब आपका diagnosis हुआ था, तो तब इतना knowledge या फिर इतना framework place में नहीं था. तो what was your response to your diagnosis? Yeah, it is like before I start that, I will just like to add one more thing. कि holistic approach या healing की अपन जहाँ बात करते हैं, तो we do not mean that medical treatment is not important. It is equally important, and that is the first of the thing that we should do. कि जब भी आपको कोई चीज, अगर कैंसर जैसी जो चीज है जो अपन बात कर रहे हैं मेन अभी, कैंसर में फर्स्ट अप्रोच शुड बी टू get rid of it through surgery or chemo or whatever it is, radiation, and then go to the holistic approach, or maybe parallel you can do it if you are like ready to do it. And it is not like a one day thing, it is a long journey, and we have to slowly adapt to that. And most of the time it is very easy to say, easier said than done. So we have to be consistent and we have to be persistent in our efforts to heal ourselves properly. अब जहां तक बात आई मेरी फर्स्ट डायग्नोसिस की, कि फर्स्ट डायग्नोसिस क्या हुआ, मेरी क्या रिएक्शन था एंड ऑल दोस थिंग्स, तो जो डायग्नोसिस मेरा हुआ था वो इट हैपेंड बाय चांस, यू कैन से. इट वाज नॉट लाइक कि मेरे को कोई भी सिम्टम्स थे या कुछ भी ऐसा था. आई वाज फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट. दिसंबर 2016 के अंदर, आई एम फ्रॉम जयपुर, सो आई हैड डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम MNIT as we spoke yesterday. So 25 years मेरे पास आउट के हुए थे, and we had the silver jubilee celebration जो होता है हर कॉलेज के अंदर. तो we celebrated in December, and December में मैं always I used to go to India every 3 months, और 3 महीने में अपना अल्ट्रा और ब्लड टेस्ट वगैरह करवाता था हमेशा.
तो वो इसलिए करवाता था कि क्योंकि आई हैड अ स्लाइट फैटी लीवर एंड आई वाज हैविंग हाइपरटेंशन, सो बीपी की मेरी दवाई चलती थी, हाई ब्लड प्रेशर की। तो उसके लिए माय जियाजी, कजिन जियाजी, ही इज हैविंग द डायग्नोस्टिक सेंटर इन जयपुर ओनली, तो उनके पास में जाके हमेशा करवाता। तो आई वेंट आफ्टर द सेलिब्रेशन, वी वेंट इन दिसंबर एंड मेरे सारे टेस्ट वगैरह सब बराबर आ गए थे। आई केम बैक टू जापान एंड देन उसके बाद में फरवरी एंड में मैं वापस से इंडिया गया, और उस टाइम पे माय सन हैड टू जॉइन कॉलेज इन जापान। तो ही सेड कि मेरे को टेस्ट वगैरह करवाने हैं, तो आई थॉट कि चलो अभी मेरा ड्यू तो नहीं है, माय नेक्स्ट टेस्ट वाज ड्यू इन अप्रैल, बट मैंने कहा कि चलो अभी करवा लेते हैं बिकॉज आई विल नॉट बी कमिंग बैक टू इंडिया। तो मैं अपने टेस्ट सारे इंडिया में ही करवाता था। तो वी ऑल वेंट फॉर आवर टेस्ट करवाने के बाद में रिपोर्ट के लिए हमेशा, जैसे मेरे जियाजी के यहीं पे हम जाते थे जिनका लैब है, तो उनके पास गए। तो देन वी वर एक्सपेक्टिंग कि भी हाँ आदित्य को कोई एलर्जी या कुछ ऐसा फूड एलर्जी, उसको सस्पेक्ट था कि मेरे को कोई फूड एलर्जी नहीं हो या कुछ ऐसा नहीं हो, तो ही विल से समथिंग अबाउट दैट। तो वैसा तो कुछ नहीं हुआ, बट ही आस्क्ड मी कि तेरी तबीयत कैसी है ये बता। सो I said I'm perfectly all right, कोई दिक्कत नहीं है, but he said no, the test results are not good, so we have to see कि क्या है क्या नहीं है। But sometimes it happens कि लैब में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो let us get all the tests repeated again tomorrow. So you come to the lab tomorrow again and then we'll do the test. तो उस दिन वहाँ पे गए टेस्ट के लिए, तो टेस्ट करवाए, the reports were again the same. ESR जो था मेरा, it was supposed to be 15, तो 15 की जगह मेरा 120 था। So I did not know what ESR is, and ये टर्म्स वगैरह अपने किसी को कुछ पता नहीं होते हैं, जनरली किसी को कुछ नहीं पता होता। तो फिर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह सब ऐसी आई थी, तो उन्होंने बोला कि देन यू गो फॉर सोनोग्राफी। ही हैड सम डाउट कि कुछ टीबी का या कुछ, मतलब देयर इज सम इन्फेक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट द WBC वाज आल्सो हाई एंड ESR वाज आल्सो वेरी हाई। we went for the sonography in his lab only. वहाँ पे सोनोग्राफी करवाई, तो सोनोग्राफी में पहले कुछ भी नहीं आया। then the doctor was confused कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। then again जियाजी सेड कि नहीं, आप बैक साइड से भी करिए सोनोग्राफी ढंग से और चेक करिए क्या है क्या नहीं है। there it was suspected कि हाँ कुछ ब्लैक स्पॉट है, ब्लैक शेडो टाइप है, तो he referred me for CT scan immediately. तो CT स्कैन करवाया, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरे को स्लोली कुछ पता पड़ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इट वाज नॉट लाइक अ सडन थिंग। CT स्कैन करवाया, तो CT स्कैन में दे डिड इट ट्वाइस। एक तो पहले दे गिव सम लिक्विड टू ड्रिंक, आई थिंक 2 लीटर्स बॉटल देते हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट एक उसके पहले CT स्कैन करा एंड देन आफ्टर दैट दे डू। तो दो घंटे बाद वापस से जब CT स्कैन करा, तो टेक्नीशियन को दिख गया होगा कि कुछ है प्रॉब्लम, कुछ नहीं जो भी है। देन ही सेड कि नाउ यू लाई डाउन ऑन योर स्टमक, आपके पीछे से हम लोग नीडल डाल करके कोई टेस्ट करेंगे। Okay. तो बोला, मैंने पूछा क्या टेस्ट है, बोले FNAC कोई टेस्ट है। आई डोंट नो FNAC क्या होता है क्या नहीं होता। तो FNAC करा उन्होंने, तो उसमें से निकाल के वो स्लाइड बना रहे थे। तो दोनों टेक्नीशियन आपस में बात कर रहे थे कि यार अभी इनके पस आ जाता तो कितना अच्छा रहता है। पस नहीं निकला इनके, एंड इट इज ओनली लाइक ब्लड। तो आई डाउटेड कि क्या है क्या नहीं, पस का क्या रीजन है क्या नहीं। दैट वाज द फर्स्ट अलार्म जो हमको लगा कि क्यों ऐसे बात कर रहे हैं वो लोग, because I was there with him only in the CT when the CT scan was going on, because they called me inside कि आप आकर के एक बार इनके साथ खड़े रहो। So they both were talking and we thought कि अच्छा, उसने like they were both talking कि पस आ जाता तो अच्छा रहता। तो I just asked them like कि पस नहीं आया तो क्या प्रॉब्लम है, but they did not tell me anything because it was not diagnosed that time. So this is how the story was building up, मतलब धीरे धीरे क्योंकि इनको कोई symptoms नहीं थे, तो we were not expecting anything कि कुछ भी ऐसा गलत हो सकता है। So this was the last thing which we were expecting. Okay. फिर उसके बाद में वो स्लाइड्स बनाई, फिर नेक्स्ट डे रिजल्ट आना था स्लाइड्स का कि क्या है क्या नहीं। तो आई हैड माय लाइक नॉर्मल बिजनेस मीटिंग इन बॉम्बे, तो मैं अगले दिन अपना आराम से ठीक है बॉम्बे जाके आते हैं, ये 1 डे ट्रिप था, बॉम्बे जाके आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट डे आई अगेन कॉल्ड अप जियाजी की क्या रिपोर्ट आई क्या नहीं है ये। देन he was also maybe trying to release this information in parts and bits कि भी हाँ एकदम से कोई शॉक ना लगे, और maybe he was also not sure. He was always telling me कि नहीं हो सकता है कि तुम्हारे को एब्डोमिनल TB हो, कुछ पानी बढ़ जाता है, कुछ वैसा हो सकता है, कुछ वैसा इन्फेक्शन हो, let me consult my doctor friends and then I will get back to you. तो फिर 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि चलो let us go to the doctor। वो फिर हमारे को डॉक्टर अरुण गुप्ता है ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके पास लेके गए।
तो देयर ही रिवील्ड कि हाँ ये रिपोर्ट्स आई हैं. इन द मीन टाइम ही गॉट द टेस्ट डन अगेन इन कैंसर हॉस्पिटल है जयपुर में, महावीर कैंसर हॉस्पिटल. वहाँ पे भी उन्होंने चेक करवाया सारा. तो ऑल द रिपोर्ट्स वर सेइंग द सेम थिंग कि ट्यूमर है और इट इज सार्कोमा. So, but it was revealed to us on the first day when we met this doctor, Dr. Arun Gupta, and yes, shocking तो था एकदम से, मतलब कि ये क्या हो गया और क्यों हो गया, मेरे को क्यों हुआ है. But जब बात करी डॉक्टर से, तो डॉक्टर he himself was like a cancer survivor. He was having lung cancer himself, oncologist. So he told me one very good thing which I think it struck my mind and it struck us a lot, and that is कि doctors do the diagnosis and it is you who do the prognosis. It is you who decide the prognosis. It is you and your God who will decide the prognosis. तो ये एक इतनी बड़ी बात थी कि मतलब हाँ, मतलब डॉक्टर्स तो खाली डायग्नोस ही कर सकते हैं, उसके बाद में प्रोग्नोसिस तो आपके हाथ में है कि आप कैसा सोचते हो कैसा नहीं सोचते हो. एंड ही टोल्ड मी कि अगर आप ये सोचोगे कि आपको जुकाम हो रखा है तो इट विल गो लाइक अ कॉमन कोल्ड. आपकी कॉमन कोल्ड के जैसे इसका इलाज भी हो जाएगा. और अगर आपको बहुत सारी, मैं आपने इतनी अच्छी लाइन बोली है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी. डॉक्टर्स दे डू द डायग्नोसिस एंड यू डू द प्रोग्नोसिस, एंड we hear all the time from patients that doctor said 6 months to live, 2 years to live, and मैं patients को ये बोलती हूँ कि नहीं, there are many even last stage survivors. People live on fourth stage for 10 years, 12 years. It's up to you how well you are living. So don't believe in that 6 months or 2 years का prognosis. Live to your best, follow a healthy lifestyle, and rest live up to the God. You do your karma, that's all you can do. आपने बहुत अच्छी लाइन बोली है. I will be using that now for other patients. Yes, of course, and you can also type it in the chat box. I mean, my kids have already done it. They are very active. They are helping me in this session. So thank you so much. Yeah. Thank you, Anushri and Aditya. Thank you. So उन्होंने बोला ये ऐसा. फिर मैं हम लोगों ने भी रियलाइज करा. एक्चुअली आई हैव लिव्ड इन जापान फॉर 25 years now. तो जब मेरे को डायग्नोस हुआ था तो इट वाज ऑलरेडी लाइक 21 years that I had lived here. और यहाँ पे जापान के अंदर बिकॉज ऑफ द बॉम्ब अटैक हिरोशिमा नागासाकी के अंदर, यहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स काफी हैं, एज एवरीबॉडी नोज. तो यहाँ पे सर्कल के अंदर, फ्रेंड सर्कल में या मेरे जो कस्टमर्स हैं उनमें कहीं ना कहीं पे कॉमन वोकैबुलरी में कैंसर वर्ड आता है. क्या किसी को कैंसर हो गया, उसका ऐसा इलाज हुआ, उसने ऐसा करा वैसा करा. तो आई टोल्ड द डॉक्टर द सेम थिंग कि भाई मैं जापान में इतना रह लिया हूँ कि कैंसर इज नॉट अ टैबू वर्ड इन जापान. एंड एवरीबॉडी थिंक्स कि हाँ इसका इलाज है एंड इट इज जस्ट लाइक अ कॉमन डिजीज, और वी हैव गॉट द डायग्नोसिस फॉर इट एंड वी क्योर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स हु आर हैविंग कैंसर. तो यहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट भी मतलब काफी कम है जापान के अंदर. कैंसर सर्वाइवर्स आर वेरी मच देयर एंड दे सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. उनको इतना एक्सपीरियंस है कि कैंसर का ट्रीटमेंट करते करते, एंड दे हैव गॉट द बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट्स इन द वर्ल्ड. Okay. Wow, this is a new information. Thank you for sharing that. Yes. So like anybody, if they want any information from Japan, we are always here, and we can help them out if anybody wants to reach here and want to get his treatment done. And one more thing I would like to add here is, like, here the doctors, even if like they do the diagnosis and they know like kitna time hai inke paas, they will share them the time frame. It is not that they will hide the time frame, but they will share the time frame in such a manner ki we have confidence कि yes, we can get cured, and there's a very very like nice bonding between doctor and the patient. So it really helped us a lot here. Thank you Nirupama ji for sharing that, because doctor patient का bonding relation बहुत ज़्यादा important होता है. Like patients believe doctor is God, and वो जो भी बोलते हैं patients believe in that. और उस time पे अगर doctors hope नहीं देते हैं, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है hope की, then we start giving up, we attract negativity, and we go into depression. And like in my case also, when it was last stage for Nitesh, and he had his doctor in Mumbai, I will not tell the name, and she is a very experienced person, and she said that when I was trying to go to US and applying for clinical trials and so many things, and she was like, I already told you he's not going to live after 6 months. Why are you taking all these efforts? And because I was needing her permission to sign some things and approve this clinical trial and all, but she did not help me at all.
So we were anyway almost changing our primary oncologist because there was no support from doctor when it was already fourth stage. So she was like, he's anyway going to die in 6 months, so let me focus on other patients and not on you. So very heartbreaking, very sad, but it happens at times. Yeah. Yeah, that is the worst thing that the doctor can do. Like instead Yeah. of giving hope, if he or she doesn't give hope, then that is not like feel कि it is not a good thing. Mhm. Yeah. एटलीस्ट मतलब हाँ पॉजिटिव होप तो दे सकते हो, ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ बहुत ही कुछ अच्छा हो जाएगा, बट यू डोंट से नेगेटिव आल्सो, सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. तो खैर ये उनसे डॉक्टर अरुण गुप्ता से हम बात करके निकले वहां से घर से उनके, एंड देन वी वर गोइंग होम. तो घर जब पहुंचे तब मन तो काफी भारी था, क्योंकि ठीक है अपन कितना भी बोलें कि हाँ पॉजिटिव रहेंगे, बट फर्स्ट टाइम तो शॉक लगता ही है. शौक हमेशा तो यही मन में चल रहा था कि हाँ वाई मी, वाई आई हैव बीन चोजन फॉर दिस थिंग, या मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है. पर फिर ये दिमाग में आया, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा टाइम तक ये थॉट नहीं रहा. मेरे दिमाग में रहा होगा 1 घंटा 2 घंटा, मे बी 3 घंटा रहा होगा थॉट. लेकिन देन आई थॉट वन मोर थिंग कि आज तक भगवान ने मेरे को सारी रेयर चीजें दी है और सारी अच्छी चीजें दी हैं, तो ये जो कैंसर दिया ये भी रेयर टाइप का कैंसर ही दिया है. क्योंकि बाय द टाइम आई हैड फॉलोड द गूगल एंड एवरीथिंग, एंड आई टोल्ड दिस थिंग टू नीरू, एंड दिस इज व्हाट शी हैड टू से. मतलब आई थिंक दिस इज द थिंग कि अतुल काफी स्ट्रॉन्ग थे, बिकॉज लाइक फॉर मी मुझे लाइक थोड़ा थोड़ा डाउट होने शुरू हो गया था जब हम FNAC की रिपोर्ट के लिए गए थे. एंड व्हेन आई रेड हिज रिपोर्ट्स आल्सो बिफोर गोइंग टू डॉक्टर अरुण गुप्ता, तो मुझे लाइक थोड़े थोड़े ये टर्म्स एंड लाइक टर्म्स पता थे ऑन्को और इन सब का थोड़ा थोड़ा एक आइडिया था. तो आई वॉज इन टू डाउट कि शायद कुछ तो है, बट आई वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेट द डॉक्टर से द थिंग्स. तो फिर ठीक है, डॉक्टर अरुण गुप्ता के साथ जब हमने बात करी, सो इट वाज वेरी वेरी पॉजिटिव. एंड देन ही टोल्ड मी कि मुझे तो लाइक व्हेन वी वर टॉकिंग कि ऐसा हुआ है, एंड वी डिड नॉट ब्रेक दिस न्यूज टू किड्स एंड आवर फैमिली एंड लाइक स्पेशली टू हिज मदर एंड फादर. मतलब मम्मी जी पापा जी को हमने नहीं बताया था बिकॉज वी वर नॉट नोइंग कि उनको कैसा लगेगा. सो लाइक दैट वाज अ वेरी हार्ड पार्ट ऑन आवर साइड आल्सो, और हमको नहीं पता था कि उनको कैसा लगेगा. सो हम लोग खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे. 2-3 दिन तक तो हमने खुद को प्रिपेयर किया कि लाइक हाउ टू डाइजेस्ट दिस थिंग. बट ये जैसे कि अतुल ने बोला कि उनसे मिलने खुद करना है, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शायद हम दोनों का इस चीज के ये चीज और नहीं गए. सो दिस was the thing which I think, I don't know how, but it was there since the beginning. So it gave told me so sorry, I'm not able to hear you, Nirupama ji. Sorry. Okay, I have changed the connection. Now it is Thank you. Yeah. okay. Yeah. Now it is okay. Thank you. Yeah. From where till when did you hear? She was sharing about breaking it to parents. You were not able to tell it to them. Voice break हो रही है. हाँ, आप पेरेंट्स को बता नहीं पा रहे थे, आपको नहीं पता था उन्हें कैसे बताना है वहां से. हाँ, तो उसके पहले हमने जब बात करी तो उन्होंने बोला कि देखो मुझे रेयर ये डिजीज, मुझे एवरीथिंग लाइक आई गेट एवरीथिंग रेयर एंड वेरी फाइन इन माय लाइफ, तो मुझे कैंसर भी रेयर हुआ है. तो मैंने बोला कि इस केस में मुझे रेयर चीज नहीं चाहिए. सो आई जस्ट वांट आवर लाइफ टू बी कंप्लीटली नॉर्मल. बट ठीक है, हमने उस चीज को लाइक ही टुक इट वेरी वेरी लाइटली. और मुझे भी ये नहीं करना था कि मैं ब्रेकअप लाइक ब्रेक डाउन हो रहा है या मुझे अंदर से कुछ चिंता है. मतलब I was having, but I was not showing it to myself also. Like I was not accepting it. Like मैं अपने आप से भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मुझे डर लग रहा है. So there were two parts of me, जो एक बहुत ज्यादा strong था और एक बहुत ज्यादा weak था. लेकिन ठीक है, फिर मैंने बोला कि हम like we were looking towards our family कि हमें उनको भी देखना है because he is only son. तो मुझे लग रहा था कि नहीं, अगर हम लोग
टूट गए या हम लोगों ने अपनी वीकनेस दिखाई तो आगे आई डोंट नो लाइक हो सकता है कि वो लोग हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो, बट एट दैट मोमेंट हमें लग रहा था कि नहीं। और दूसरी बात ये कि हमें इस चीज से डरना नहीं है, दैट वाज द थॉट कि बस कि हमें इस चीज से डरना नहीं है, वी हैव टू गो अहेड। द ओनली थिंग विच वी वर थिंकिंग बोथ ऑफ अस टुगेदर इंडिपेंडेंटली, नॉट कि इन्होंने मुझे समझाया या मैंने इनको समझाया, बट टुगेदर वी वर थिंकिंग द सेम थिंग कि हमें इस चीज से आगे बढ़ना है। और उसके लिए जो हेल्प हमें चाहिए हमने लिया, मतलब वी डिड नॉट फील शाय कि हमें एस्ट्रोलॉजर से बात नहीं करनी है या डॉक्टर से बात नहीं करनी है या जिससे हम लोग क्लोज हैं या जिस किसी फ्रेंड से हम लोग क्लोज हैं उससे बात नहीं करनी है। किसी से लाइक जिससे हम लोग ले सकते थे हेल्प, हमने सबसे बात करी एंड या वी मूव्ड अहेड। वाओ वाओ, वेरी वेल सेड कि हमें इससे डरना नहीं है, और अब तो हो गया है, और वो भी रेयर फॉर्म का कैंसर है, तो काफी कम लोग इस समय हिम्मत जुटा पाते हैं। बट आई थिंक आपने जो चीज बोली ना कि हमें स्ट्रांग रहना है, और हम बहुत लोग इससे रिलेट कर पाते हैं व्हेन वी वी और लव्ड वंस आर डायग्नोस्ड विद दिस, वी ऑल फील द सेम दैट वी हैव टू बी स्ट्रांग, देयर इज नो अदर चॉइस नाउ। अगर आप हमेशा अपनी लाइफ में इमोशनल वीक ब्रेकडाउन रहे, लेकिन फिर भी एट दिस पॉइंट यू गेट सो मच ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम some power कि this is the only way for you. And I never thought that I will be able to go through the entire process of caregiving for a cancer patient, that too in such a rigorous way. But when the moment came, it happened automatically, because उस वक्त उसके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है, nothing else matters at that time. तो फिर आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ? हाँ, उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जो उस टाइम पे होली थी, एक्चुअली होली के एक दिन पहले, छोटी होली वाले दिन या उसके एक दिन पहले, मतलब 2 दिन पहले ही डायग्नोस हुआ था मेरे को। और होली तो मनाते हैं सब जने, तो जिस अपार्टमेंट में हम लोग रहते थे वहां पे नीचे होली का सेलिब्रेशन था। तो आई वुड नॉट टेल अ लाई, बट मेरी जो अंदर की वीकनेस थी या जो अंदर मेरे डर था अपने को, व्हाट आई फील इज कि इफ वी आर वल्नरेबल देन वी शुड लेट इट आउट ऑल्सो, और वो अपने को थॉट निकालना भी चाहिए। मेरे दिमाग में जब हम नीचे गए थे होली खेलने के लिए तो एक बार ये जरूर आया था कि कहीं ये मेरी लास्ट होली तो नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा स्ट्रांग ही रहूं मैं सोचा मैंने कि कहीं कहीं ये लास्ट होली तो नहीं है मेरी। सोचा, होली हम लोगों ने खेली भी नीचे, मैंने, मेरी मदर ने, मेरी वाइफ ने, बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे होली खेलने के लिए। वी हैड नॉट डिस्क्लोज्ड येट एट दैट टाइम टू देम कि क्या है एग्जैक्ट पोजीशन, क्या नहीं है। बट आफ्टर कमिंग बैक होम, नीचे से होली खेल के आने के बाद में मेरे दिमाग में खाली 2 चीजें थी। एक तो ये था कि दिस कैन नॉट हैपन सो सून, मतलब ये दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये मेरी एंड ऑफ लाइफ कैन नॉट बी दिस सून, मैं इतनी जल्दी मतलब नहीं जा सकता। एंड दैट ऑल्सो लूजिंग टू अ डिजीज, ऐसा मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। ये थॉट मैं बार बार अपने, भगवान दे रहे थे, अपने आप आ रहा था, मैं सोच रहा था, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बट दिस वाज वन थॉट। एंड द अदर थॉट वाज कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बिफोर आई गो। तो ये 2 चीजें जब प्रोसेस में आई, दिमाग के अंदर चलती रही, तो आई थिंक कि फिर माइंड आपका उसी तरह से एक्ट करना चालू कर देता है। जो आप सोचते हो वैसे ही आपकी चीजें होना चालू होती हैं, और भगवान भी फिर वैसे ही अरेंज करने लग जाता है चीजें अपनी कि क्या क्या आप सोच रहे हो तो हाँ ठीक है, यू विल गेट, आपने जो सोचा है, बोलते हैं व्हाट यू प्रपोज गॉड डिस्पोजेस दैट, राइट। तो वही चीज फिर होना चालू हुई। तो फिर देन वी हैड डिसाइडेड कि हाँ मेरे को यहाँ पे जापान आना है, जापान में करवाना है ट्रीटमेंट। तो फिर माइंड फ्रेम ये शिफ्ट हो गया कि वी हाँ नाउ वी शिफ्ट आवर माइंडसेट कंप्लीटली टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट एंड गेटिंग द रिजल्ट, द पॉजिटिव रिजल्ट। तो उस माइंडसेट से हम लोग यहाँ पे आए। तो मी एंड माय सन वी केम फर्स्ट, और नीरू को सारा वहाँ का सेटिंग करना था, मम्मी पापा का, माय डॉटर वाज देयर, तो उनकी सेटिंग करने के लिए शी स्टेड बैक फॉर 1 वीक। और ये था कि हम वहाँ जाएंगे तो एकदम से तो कुछ होएगा नहीं ऑपरेशन, तो इट विल टेक सम टाइम। तो उस हिसाब से हम लोग आए। देन वी वेंट टू द, वी गॉट द रिकमेंडेशन फ्रॉम डॉक्टर अरुण गुप्ता, वहाँ का जो, यहाँ का जापान का जो बेस्ट हॉस्पिटल है, उसका रिकमेंडेशन लेके आए।
तो वी वेंट एंड मेट द डॉक्टर. इंडिया में ही था कि ये जो कैंसर है, दो इट इज अ रेयर टाइप ऑफ कैंसर, लेकिन क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू में है और किसी ऑर्गन के ऊपर नहीं है, तो दे विल डू द सर्जिकल प्रोसेस. सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं एब्डोमेन से सारा निकाल देंगे और इट विल बी ऑल राइट. मतलब ऐसा था. लेकिन व्हेन वी मेट द डॉक्टर फर्स्ट इन जापान, तो उन्होंने इंडिया की रिपोर्ट्स देखी सबसे पहले. इंडिया की रिपोर्ट्स देखने के बाद में बोला कि हाँ आपका ये सरकोमा है, इसका इट इज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज द थर्ड स्टेज, और ये वो जो भी उनको बताना था उन्होंने. 20 Yes, it was very big. 20 centimeter by 10 centimeter by 6 centimeter. So it is like a cylindrical this thing. And you So, did not have any side effects? No, No. I did not have any like symptoms. कुछ भी नहीं थे मेरे The symptoms. only एक symptom symptom ये था कि हाँ रात को मेरे को ये था कि मैं 2-3 महीने से खाना खाने के बाद में बोलता था कि I'm getting tired, I'm feeling tired, so I'll sleep. Oh, तो around 9 o'clock dinner लेने के बाद मैं सो जाता था. okay. I used to get up at 6 or 7 o'clock और मेरा normal routine करके पूरा मतलब I used to work for 12 hours or 14 hours in the day. सब Yeah. normal चल And रहा था. he lost weight also, but he was also dieting, so हमें लगा कि वो dieting की वजह से weight lose हो रहा है, and he is getting like tired because of that only. So मतलब he was very very asymptomatic because he was doing all his things normally. Okay. तो डॉक्टर के पास गए अंदर, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है आपका, और आपका ये निकालेंगे ट्यूमर, और साथ में आपकी जो किडनी है वो भी इससे अफेक्टेड हो रही है, एनगल्फ्ड हो रही है. तो इट हैज कम ऑन योर किडनी आल्सो, लेफ्ट किडनी. तो वील हैव टू रिमूव योर लेफ्ट किडनी आल्सो. Okay. सो दैट वाज अगेन लाइक Yeah. बिग शॉक कि अरे ये क्या, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप भगवान क्या क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट इज इट. मतलब तो ठीक है, मतलब शौक था, बट स्टिल लाइक आई हैड टू कीप माय कूल. मैं और मेरा बेटा थे साथ में, तो आई कुड नॉट बी वीक दैट टाइम. सो But उसके बाद में उन्होंने यस getting one shock as cancer diagnosis और उसके बाद में ये कि they'll have to remove your kidney which is your body organ and Yes. can't even think of living. I know हम ले सकते हैं one kidney से, but it's your Yes. part which they are removing and that's another shock came to you. निरुपमा जी, आपने इस चीज को कैसे लिया? I know strong तो रहना ही होता है, but नहीं मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, बट द थिंग इज कि मुझे ये चीज अतुल ने फोन पर बताई थी. okay. तो बिकॉज आई वॉज इन इंडिया एट दैट टाइम जब किडनी रिमूव करने के लिए बोला था तब, तो आई वॉज शॉक. लेकिन क्योंकि अतुल का एक और MRI बाकी था, तो मैं फिर भी ये होप कर रही थी कि शायद नेक्स्ट MRI में ऐसा डॉक्टर बोल दे कि Right. मिरेकल हो जाए और वो बोले कि नहीं. बिकॉज मैंने सोचा था कि जब मैं खुद डॉक्टर से ये चीज सुनूंगी एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस टू हिम कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों, इज देयर एनी अदर चॉइस. तो आई वाज होपफुल कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता. लाइक मेरे दिमाग में शुरू से जो एक अप्रोच रही है वो ये है कि ऐसा नहीं हो सकता एंड वी विल कम ओवर इट. लाइक आई डोंट नो, बस something will happen. Things या will turn around. एवरीथिंग इज हैपनिंग. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ या किडनी नहीं निकली या जो भी नहीं हुआ. लाइक एवरीथिंग हैज हैपेंड. बट जो शुरुआत का मेरा जो फर्स्ट सेंटेंस रहा है हमेशा लाइक दिमाग के अंदर पूरे डर के साथ में, पूरा पहले सबसे ज्यादा डर लगता है एंड देन नहीं ऐसा नहीं होगा एंड गॉड इज विद अस. आई सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड. दैट इज द ओनली थिंग which has given me faith and which has given me strength. Right. So right. yeah. तो ये हुआ. फिर 2 वीक के बाद में जो यहाँ पे डायग्नोसिस होने थे सारे कि MRI करेंगे और सारे टेस्ट करेंगे बिफोर द फाइनल डायग्नोसिस. सो दे हैड गिवन मी अ डेट आफ्टर 2 वीक्स. तो 2 वीक तक मैं अपना नॉर्मल ऑफिस वगैरह जा रहा था. आदित्य वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज कॉलेज, और इन द मीन टाइम नीरू आल्सो केम टू टोक्यो एंड जॉइंड अस. फिर हम लोग गए MRI के लिए. MRI हुआ, फिर वी वेंट अगेन टू द डॉक्टर कि भी हाँ फाइनल रिपोर्ट क्या है, फाइनल बताएं. तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ इट इज ऑल लाइक एज एक्सपेक्टेड, जो आपको पहले बोला था वही सारी चीजें हैं, बट यू हैव टू गो एंड मीट द ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट एज वेल. तो फिर अगेन कि भी हाँ क्या ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास में क्यों जाना है. तो स्टिल लाइक माय जापानीज फ्रेंड वाज आल्सो विद मी. तो ही सेड कि नहीं चलो हो सकता है कोई बात होगी, बात मिल करके आते हैं. तो वी वेंट टू इन हिज कैबिन. तो उन्होंने ही गेव अगेन अनदर शॉकर कि आपकी फेमरल नर्व जो है वो निकालनी पड़ेगी. अब फेमरल नर्व क्या होती है ये भी नहीं पता था. Exactly. क्या होती है?
फेमरल नर्व अपनी साइटिका के साथ में एक नर्व होती है दैट गोज फ्रॉम द हिप जॉइंट to the ankle. के से लेकर के ये अपने नी तक जाती है. अच्छा. So that is like the transmitter Ankle for the movements of the joints. Okay. तो वो आपकी जो नर्व है वो भी एनगल्फ हो रही है से सार्कोमा से, तो वो भी आपकी निकाली जाएगी. और साथ में वी विल कीप दिस थिंग गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट आल्सो इन द ऑपरेशन थिएटर इन स्टैंड बाय, कि आपका अगर ओपन करने के बाद में ऐसा लगा कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी थोड़ा बहुत अगर वो एंगल्फ कर रही है तो वी मे हैव टू रिमूव द सम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और फेमरल नर्व निकालेंगे तो उसका जो साइड इफेक्ट्स है वो ये होगा कि आपके जो 3 जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट जो है, उसमें से कोई भी 2 जॉइंट या हो सकता है 3 जॉइंट या हो सकता है 1 जॉइंट जो है वो आपका इमोबिलाइज हो जाए एंड यू विल हैव टू वॉक विद अ स्टिक फॉर होल ऑफ योर लाइफ. दैट इज फॉर श्योर. दैट इज व्हाट ही टोल्ड अस कि 1 जॉइंट तो आपका जाने वाला ही है पक्का. इफ यू आर लकी 1 जाएगा, अदरवाइज 2 या 3 जॉइंट जा सकते हैं. तो इट विल बी लाइक योर एक आपका लेफ्ट लेग जो है वो ऐसा कैसा ही रहने वाला है. तो शॉक पे शॉक लगते जा रहे थे, मतलब एक के बाद एक में. इट वाज लाइक रिवीलिंग इन पार्ट्स, बट every part and every time it was like much more stronger and much more severe blow कि भी ये क्या हो रहा है. But ठीक है, we went through that process और भगवान ने हिम्मत दी उस टाइम पे कि नहीं, हाँ ठीक है, जो भी होगा सब अच्छा ही होगा. उसके बाद में एक और न्यूज ये कि अभी हमारे पास ऑपरेशन डेट्स नहीं है. It was March 29th we met the doctor. That was my son's birthday. आदित्य की बर्थडे थी, उस दिन ये सब हो रहा था सारी चीजें. Okay. तो he told us कि हमारे पास में 11th मई की डेट है, उसके पहले ऑपरेशन की डेट है. तो our worry was this कि दिसंबर में टेस्ट करवाए थे तब कुछ भी नहीं था. मार्च के फर्स्ट वीक में जब टेस्ट करवाया तो आपका 20 सेंटीमीटर्स का ये आ रहा है. तो इट इज वेरी वेरी लाइक एग्रेसिव टाइप ऑफ sarcoma. और ये गूगल पे सर्च करा तब भी ये था कि एग्रेसिव है काफी. तो वी डिड नॉट वांट टू लूज लाइक इवन अ सिंगल डे. राइट. तो फिर वो जो जैपनीज थे मेरे फ्रेंड साथ में, उन्होंने डॉक्टर से सारी बात करी कि क्या आगे रहेगा क्या नहीं रहेगा. ही आल्सो रिक्वेस्टेड कि आपके पास में कोई अगर अर्ली डेट्स अवेलेबल हो, कभी कोई ऑपरेशन कैंसिल हो तो लेट अस नो, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन हो. ये सब करके हम लोग बाहर आए. तो ही टोल्ड अस कि चलो अपन मेरे ऑफिस चलते हैं एंड यू विल मीट माय वाइफ देयर, और शी इज आल्सो अ कैंसर सर्वाइवर. ओके. तो हम लोग उनके वहाँ पे गए. तो हिज वाइफ रन्स अ ब्यूटी क्लिनिक देयर. तो वहाँ पे जा करके मी, माय सन एंड नीरू, हम आदित्य, नीरू और हम तीनों जने गए उनके साथ में. उनसे बात करना चालू करी. तो उन्होंने मतलब जब पहली बार मिले थे उनसे, हम उनकी वाइफ से, तो शी इज लाइक शी वाज एट दैट टाइम अराउंड 55 years old. एंड 55 years old होने के बाद में भी उनके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी थी और इतनी ज्यादा वो हैप्पी थी और उनके इतनी ज्यादा चमक थी चेहरे पे. और द वे शी वाज टॉकिंग, वो देख करके बात करके उनसे हम लोग काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुए और लगा कि हाँ नहीं सब कुछ ठीक है. फिर उन्होंने हमारे से बात करी, बताया कि उनको यूटेरियन कैंसर था. शी गॉट ऑपरेटेड 3 times. उनकी 36 कीमोथेरेपीज हुई थी इन 3 years. 36 कीमोथेरेपीज, मतलब बॉडी आपकी एकदम खत्म ही हो जाती है उस तरह से. सेड कि मैंने अपनी और भी दूसरी तरह की जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं वो सब करी हैं, ये सब हुआ है मेरे साथ में. सी मैं अभी कैसे रह रही हूँ, तुम्हारे को पता है, देख रहे हो तुम मेरे को मैं कैसी हूँ, तो तुम्हारी चीज तो कुछ भी नहीं है. कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ के डॉक्टर्स तो बिल्कुल एक्सपर्ट एंड दे विल मेक यू ऑल राइट, तुम एकदम सही हो जाओगे. तो उससे हम लोगों को काफी ज्यादा एक वो हिम्मत मिली, बहुत ज्यादा एक वो मिला. क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे को देखते हैं कि वो ज्यादा हमारे से सफर करा हुआ है और वो इतना ज्यादा हिम्मत रख रहा है और वो हमारे को इस तरह से बोल रहा है, तो अपना माइंडसेट फिर उसी तरह से चेंज हो जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो हमारा माइंडसेट 2 घंटे पहले था जब हम डॉक्टर के केबिन में थे, और जब हम उनसे मिले तो 2 घंटे में इट वाज कंप्लीटली चेंज. एंड वी हैड अ ब्रीदर के भाई हाँ अब जो होगा वो अच्छा ही होगा और सब कुछ अच्छा होने वाला है. राइट. काफी जरूरी बात बोली आपने कि एक दूसरे की जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ जब वो ठीक हो सकते हैं so why can't I? So we try to learn from each other, and one of the reason, when we were planning to go to US for treatment, so we got in touch with many cancer patients from the US
who were even at fourth stage were living for 8 years, 10 years. There was a friend, Sue Molinda. So she had exactly same cancer as Nitesh, and she had taken by that time 40 chemos. And she's like, यार Dimple 5 साल से चल रहा है, अब तो आदत हो गई है. She would drive, come to the hospital, watch movie, take chemo, go back, and she guided us in supplements and so many other things. So when we met her in US, and she was like, कि, cancer, okay, it's been now 8 years, so I'm totally fine. Like, you know, treatment is going on. She would guide us also. You should do that. And she was what, 58 years old. So we were like, okay, Nitesh, you are just 26. So come on, you know. So many other people as well gave us a lot of strength when we were seeing, you know, as a part of community, when we were talking to other patients, other survivors, कि हाँ जब वो लोग हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं, ठीक. And this is why we started Cancer Healing Journey, जहाँ पे हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स, केयर गिवर्स, कैंसर पेशेंट्स की जर्नी उनकी सुनते हैं, लिखते हैं, because so many other patients read that and they get learnings and inspiration from each other. And you are like example of that. So thank you for sharing that, and hats off to that women who guided you or motivated you in doing that. Yes, we are also very, very thankful to her. Because of her only we got motivated and like, yes, we carried on very well. Right, yeah. तो फिर then we went to our home. उसके बाद में हमारे को ये लग रहा था कि ये काफी एग्रेसिव है, तो we should try other options also. हमारे को second opinion लेनी चाहिए किसी और हॉस्पिटल में. पर यहाँ पे जापान में काफी डिफिकल्ट होता है कि डायरेक्टली आप किसी बड़े हॉस्पिटल में जाओ. Okay. तो हाँ, we then tapped our friends के हम कौन फ्रेंड हमारा हेल्प कर सकता है, how we can get some connection. तो यहाँ पे दो बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स हैं टोक्यो के अंदर. वन इज द नेशनल कैंसर हॉस्पिटल जिसमें हम लोग गए थे, एंड द वन इज रियाके. तो थ्रू आवर फ्रेंड वी गॉट अ रेफरेंस इन द सेकंड हॉस्पिटल, व्हिच इज द सेकंड बेस्ट हॉस्पिटल यू कैन से. और वहाँ पे रेफरेंस हमारे को डायरेक्टर का ही मिला, उनका डायरेक्टली, मतलब द टॉप मोस्ट रेफरेंस दैट वी कुड गेट. एंड दैट आल्सो वी फील दैट इट इज ऑल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. जो हमारी जर्नी रही है, हम यही रियलाइज करते हैं कि जिस दिन से पता पड़ा और आज तक यही रहा है कि फीलिंग यही आई है कि भगवान ने हमारा हाथ पकड़ा है और उसने ये रास्ता दिखाया है कि हाँ अब तुम ये करो, अब तुम ये करो, मैं ये बता रहा हूँ, ये रास्ता ऐसे है, ये चीज बेटर रहेगी तुम्हारे लिए, ये नहीं रहेगी. तो इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट. तो उन फ्रेंड के थ्रू हमारे को मिला रेफरेंस. तो वी वेंट टू दिस डॉक्टर, और वो जो हॉस्पिटल है दैट इज द सार्कोमा स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, और वहाँ पे सार्कोमा का रिसर्च वगैरह सेंटर भी है पूरा. तो वी वर मोर कॉन्फिडेंट कि हाँ चलो अब सार्कोमा के स्पेशलिस्ट, मतलब इट इज अ स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर सार्कोमा ओनली. तो वी आर इन मोर बेटर हैंड्स इन फैक्ट. तो वहां पे जाके डॉक्टर से मिले, बात करी, उन्होंने सारी रिपोर्ट्स देखी. उन्होंने कहा कि हाँ जो वहाँ पे नेशनल कैंसर हॉस्पिटल में आपको बोला था वो सारी चीज सही है, द प्रोसीजर इज आल्सो सेम एंड आवर ओपिनियन इज आल्सो दैट यू गो फॉर इट विद देम, नो प्रॉब्लम. तो हमने कहा कि हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम, बट वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ द डेट. हम इतना वेट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उनसे फिर अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में मिले थे सेकेंड वाले हॉस्पिटल में. तो इट वाज अबाउट लाइक 5 वीक्स लेटर जो हमारे को डेट मिली थी, या 6 वीक लेटर की डेट मिली थी. तो हमने उनसे बोला कि आप तो हमने उनसे बोला कि आप अगर कोई हमारे को अर्ली डेट दे सकते हो तो वी वुड लाइक टू गेट आवर ऑपरेशन डन इन योर एक्सपर्ट हैंड्स. तो उन्होंने कहा कि अच्छा यू वेट आउटसाइड, आई विल जस्ट कॉल यू बैक. तो फिर उन्होंने हमारे को कॉल करा अंदर हम जब गए तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक डेट अवेलेबल है बिफोर द 11th ऑफ मई, एक डेट अवेलेबल है, दैट इज 26th ऑफ अप्रैल. हम 26 अप्रैल को आपका ऑपरेशन कर सकते हैं. तो बीइंग एन इंडियन एंड मी बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल दैट, आई हैड टेकन द इंडियन कैलेंडर आल्सो विद मी कि भाई हाँ ठीक है अपन डेट देख लें, क्या वार पड़ रहा है, क्या तिथि पड़ रही है उस हिसाब से. तो 26 तारीख की जो डेट थी दैट वाज अमावस्या. तो मैंने कहा रही अमावस्या आ रही है, क्या करेंगे. मेरे साथ में मेरे कलीग भी गए थे वहां पे डॉक्टर के पास में, हम लोग पूरी मतलब फैमिली थी. तो मन में एकदम से डाउट आया कि क्या है क्या नहीं है. तो माय कलीग वेंट आउटसाइड कि भाई मैं पंडित जी से पूछता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना. एंड वी वर देयर इन द कैबिन. और जो डॉक्टर मत्सुमोतो हैं जो डायरेक्टर थे वो इंडिया आए हुए थे एक बार. तो ही रियलाइज कि हाँ इनके बीच में कुछ चल रहा है. एंड ही आस्क्ड अस कि क्या मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इज इट नॉट ऑस्पिशियस डेट और व्हाट समथिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग. ओके. मतलब सर्जरी के लिए भी ऑस्पिशियस डेट होती है क्या? बस वही. तो देन मतलब चलता है अपने दिमाग में. आई थिंक इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल
think कि भी हाँ ठीक है, कोई अच्छी जगह पे हो, अच्छी जगह, जो those who believe in astrology, I don't know. Definitely, yeah. So, I believe in that, so I thought कि भी हाँ कोई अच्छे दिन हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा. That probably everyone thinks about like that, you know. Nice, 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 yeah. फिर वो बोले कि हाँ आई नो कि इंडिया में यू हैव दिस ऑस्पिशियस डेट्स, अनऑस्पिशियस डेट्स और ये सब होती हैं, बट व्हेन यू आर इन जापान थिंक लाइक जापानीज. Okay. सो देन आई थॉट कि हाँ इन्होंने ये मेरे को बोला है तो इट इज अ गुड लर्निंग फॉर मी आल्सो कि आई शुड थिंक रैशनली एंड आई शुड रिमूव माय फियर फैक्टर, और मेरी जो भी डाउट्स हैं वो सब मेरे को रिमूव करके और मेरे को पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए. और अगर पॉजिटिव वे में सोचें तो अमावस्या क्या है, अमावस्या इज कॉल्ड इन इंग्लिश न्यू मून डे. तो न्यू मून है तो न्यू मून पे नई बिगनिंग होगी. इट्स नॉट गोइंग टू बी समथिंग लाइक एंडिंग, इट इज गोइंग टू बी अ न्यू बिगनिंग. Yeah, right. तो वो थॉट एकदम से दिमाग में आया मेरे कि नहीं चलो अपने को इसको कैसे स्विच करना है. यू हैव टू स्विच योर माइंड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. दैट इज व्हाट आई लर्नड इन माय लाइफ. तो स्विच करा और बाय द टाइम माय कलीग केम बैक इन द केबिन, मैंने मन में डिसाइड कर लिया था कि नहीं वील गो विद दिस डेट. एंड लकीली और वॉट एवर यू कैन से, पंडित जी बोले कि नहीं अमावस्या है लेकिन तिथि अच्छी है, सब अच्छा है, तो आप तो करवा लो ऑपरेशन उसमें. बिकॉज दे नो कि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो वो भी पॉजिटिव फीडबैक ही दे रहे थे. Right, right. बट Just इट वाज अ बिग लर्निंग फॉर अस. या इट वाज अ बिग लर्निंग के शुभ अशुभ आप सोच भी रहे हो नहीं भी सोच रहे हो तो इट इज ऑल देयर इन योर माइंड. सो right, आप right, right, विदाउट फियर आप आगे बढ़ो. लाइक right, right. तो उस तरह से मतलब ये डिसाइड हुआ. फिर ऑपरेशन की डेट डिसाइड हो गई 26 को, एंड देन आई स्टिल कंटिन्यूड गोइंग टू द ऑफिस अंटिल द 20th of April. Okay. हाँ मैं ऑफिस जाता था रेगुलर और अपना शाम को जल्दी आ जाता था थोड़ा सा, लेकिन आई केप्ट माई नॉर्मल लाइफ गोइंग ऑन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड लाइक टू कन्वे टू एवरीवन कि आपके साथ में जो भी हो रहा है, जो होने वाला है वो होएगा, वैसे ही होगा. लेकिन आप जितना मैक्सिमम हो सकता है ट्राई टू डू योर थिंग्स लाइक नॉर्मल वे, कि जो आप कर सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो. डोंट ओवर एक्सटेंड योरसेल्फ, बट हाँ फिजिकली आप जितना कर सकते हो पॉसिबल है उतना आपको करना चाहिए. फिर या एज आई टोल्ड यू कि हम लोगों ने शेयर नहीं करी थी अपनी जर्नी काफी लोगों के साथ में, बहुत ही कम, मतलब इट वाज ओनली आवर क्लोज सर्कल हु न्यू इट कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, इवन इन जापान एंड इवन इन इंडिया. लेकिन मेरे मन में एक चीज खटक रही थी कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड जो हु लिव्स इन लंदन उसको नहीं बोला था अभी तक. तो 20th को जब मैं वापस घर आया था आफ्टर माय लास्ट डे इन द ऑफिस, तो मैं अपनी कार पार्क करी, उसके बाद मैंने उसको कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो गया है. And he was also like worried कि क्या हो गया, कैसे हो गया, and like बात हुई. फिर मैंने कहा नो आई एम इन गुड हैंड्स और मेरा ऑपरेशन है अभी और इट विल ऑल बी फाइन. ही आस्क्ड मी कि मैं आऊं, पहले आ जाता हूं, ऑपरेशन में भी हैं 4-5 दिन है 6 दिन, आई कैन कम इफ यू वांट देन आई कैन कम, यू टेल मी. मैंने कहा नहीं तो अभी आएगा तो कोई मतलब नहीं है, लेट मी गेट वेल, मैं हॉस्पिटल से आता हूं फिर मस्ती करेंगे, यू कम आफ्टर माय ऑपरेशन. Right. तो ये बोला तो ही ऑल्सो गॉट कन्विंस्ड कि हाँ नहीं ठीक है, सब कुछ ठीक है, चल रहा है. लेकिन दैट इज द फर्स्ट टाइम इन दिस फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय जर्नी कि आई क्राइड अ लॉट. मैं उसका फोन रखा और मैं बहुत रोया कार के अंदर अपना. I never showed this thing to my family and I don't know like how many of my family members know till now कि मैं उस दिन रोया था. And then I washed my face and then I came back home. उसके बाद में ठीक है नॉर्मल हो गया. मतलब the thing is कि if you are feeling your emotions तो उसको let out करना जरूरी है. Maybe you don't let it out in front of the people who could get feared about this thing कि भी क्या होने वाला है कि, but you should let it out. That is a learning that happened with me. कि अपने को अपना निकाल देना चाहिए जो भी फियर है या जो भी. और एक दफा आप रो लेते हो तो हल्के हो जाते हो, हल्के हो जाते हैं. राइट, राइट. हल्के हो जाते हो तो फिर आपकी हिम्मत भी बढ़ जाती है. काफी काफी सही बात बोली. इनफैक्ट जब नितेश का डायग्नोसिस हुआ था लास्ट स्टेज वाला, तभी अचानक से जब डॉक्टर ने बोला कि ही हैज ओनली 6 months टू लिव एंड वी बोथ वर इन द हॉस्पिटल. ही वाज डूइंग हिज पेट स्कैन for this new diagnosis and I was sitting in doctor's cabin, and when he told me I was totally numb for minutes and then just crying and not able to speak anything. And doctor and Nitesh was calling that my scan is done, where are you? And I was like, I just cannot go in front of him right now because I don't want to cry in front of him. He's already scared कि just now treatment got over and what again फिर से कुछ चालू हो गया है.
So I went to there's a temple in the hospital. So I went to the temple and I went to the bathroom and cried a lot. And people were staring at me. I was crying in the lift because, and that was the time when I got that feeling of a hospital कि हम लोग इतनी बार हॉस्पिटल आए हैं बट हमने किसी सामने वाले की तकलीफ को कभी समझा नहीं. हम आए हॉस्पिटल, अपना काम किया और हम वापस चले गए. There are so many suffering, so many people dying, so many family members worried, crying. And that was the time when it was my day and I was crying in the lift. लोग देख रहे थे but मुझे किसी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि इतना ज्यादा पेन था अंदर. Then I was like ठीक है, थोड़ा सा अभी नॉर्मल फील होके मुंह धोया, पानी पिया, फिर मैं नितेश को 15-20 मिनट बाद में मिली. तो लेट आउट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, वरना वो मैं नहीं चाहती कि मेरे उसके सामने निकले. तो आपने सही बताया कि आप नहीं चाहते थे कि आपकी फैमिली के सामने निकले. मे बी यू वर मोर कंफर्टेबल अलोन और विद अ फ्रेंड व्हेन यू वांटेड टू क्राई एंड let out your emotions. Yeah. I did not cry even in front of my friend. I cried after keeping the phone क्योंकि मैं अकेले में ही अपना let out करना चाहता था कि ठीक है, it should come out of me. तो फिर ऑपरेशन के 2 दिन पहले we went to the hospital, admission हुआ. Then the doctor briefed about all the things again. जो ऑपरेटिंग डॉक्टर होता है वो बताता है यहाँ पे सारी चीजें, डायग्राम बनाया पूरा उन्होंने कैसे क्या होगा. और yeah, because I am also a thalassemia trait. I have a thalassemia trait. I am not a thalassemia this thing, but thalassemia trait है मेरे को. तो in that hemoglobin का जो लेवल है वो मेरा कभी भी 10 के ऊपर नहीं जाता है. 10.1 के करीब ही रहता है. Because of this tumor, this thing went down to, I think it was around 6, in between 6 and 7. Okay. तो डॉक्टर सेड कि नहीं, आपका पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, उसके बाद में ही व्हेन द लेवल गोज अप देन वी विल सी कि वी कैन ऑपरेट ऑन 26 और नॉट. 25th को हुआ, हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर आया. देन आई वेंट फॉर सर्जरी. सर्जरी के दिन भी काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई. द सर्जरी वाज ऑन अमावस्या एज आई टोल्ड बिफोर. उसके बाद में सुबह पूजा वूजा करके हम लोग 8:30 बजे आई वाज इन द ऑपरेशन थिएटर. और यहाँ आई डोंट नो इंडिया में कैसा होता है, लेकिन जापान के अंदर ये है कि दे टेक द पेशेंट वॉकिंग ओनली टू द ऑपरेशन थिएटर. दे डोंट टेल हिम टू गो ऑन अ स्ट्रेचर और अ व्हील चेयर और एनीथिंग. उनके सारे मतलब वट एवर द रीजन में भी, बट ये लोग बोलते हैं कि नहीं आप वॉक करके जाओ. तो वॉक करके आई वेंट टू द थिएटर. इन सबको बाय बाय बोल करके जब मैं लेटा ऑपरेशन थिएटर की ऑपरेशन टेबल के ऊपर, तो the first thing that I heard there was Om. तो मैंने सोचा कि हो सकता है मैं भगवान को याद कर रहा हूँ तो मेरे कान बज रहे होंगे. बट अगेन देन आई हर्ड इट अगेन वन मोर टाइम, ओम. तो आई थॉट, आई मूव्ड अराउंड माय हेड कि मैं कहाँ पे देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ. तो पीछे से वो एनेस्थीसिस्ट है वो आए बाहर और ही सेड अगेन, ही अगेन ग्रीटेड मी विद ओम एंड नमस्ते. तो जापानीज जो लोग हैं वो इतने वोकल नहीं होते हैं और इतना अपने एक्सप्रेस नहीं करते हैं फीलिंग्स और कुछ बताते नहीं हैं. तो आई वाज इवन लाइक मोर सरप्राइज कि जापानीज जो है वो ओम बोल रहा है और मेरे को ग्रीट कर रहा है नमस्ते से. तो उनसे बात हुई, फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ, आई हैव बीन टू इंडिया, और वो सारी बात हुई उनसे. तो काफी ज्यादा मतलब मेरे को एकदम रिलैक्स हो गया वहां पे कि नहीं अब पक्का है कि भगवान मेरे साथ में ही है. और ओम का उच्चारण हो गया है, वी स्टार्ट एवरीथिंग विद ओम. तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है जिंदगी के अंदर. That too in a like foreign land. फॉरेन लैंड में ये चीज होना तो एक बहुत ही मतलब बड़ी बात है. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग टू हैपन टू यू नो. तो और ज्यादा फिर वो आई वाज कंफर्टेबल, आई मीन टू से. फिर बस द ओनली पेनफुल थिंग वाज एपिड्यूरल ब्लॉक. जब लगाते हैं तो एपिड्यूरल ब्लॉक लगा नहीं एक बार के अंदर. इट वाज सीवियर पेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. वो इंजेक्शन वो नीडल गई नहीं, सेकंड टाइम में गई, वो हुआ. उसके बाद में मैं सीधा लेटा. देन there was a clock in front of me. तो वहाँ पे मैंने देखा 8:45 बजे हैं. तो that was it. उसके बाद में तो एनेस्थीसिया लग गया था तो ऑपरेशन चालू हो गया. they did all the procedure. फिर अराउंड 3:45 अराउंड आफ्टर 7 hours ऑपरेशन खत्म हुआ, सब हुआ. एंड आई हैड ब्लड लॉस आल्सो ऑफ 2 liters ब्लड लॉस हुआ था इसके अंदर पूरे प्रोसेस के अंदर. And the stitch was like, the cut was navel के ऊपर था around, it was total 27 centimeters, so around 11 inches का कट था पूरा. Okay. तो नेवल के नीचे और नेवल के ऊपर एकदम स्ट्रेट कट था. उसके बाद में उन्होंने
सब ये निकाला ट्यूमर 20 सेंटीमीटर्स बाय 10 सेंटीमीटर्स का, किडनी रिमूव करी, फेमरल नर्व रिमूव करी, सब कुछ हुआ। देन रिकवरी रूम में लेके गए, इन लोगों को बताया, ब्रीफ करा, इनको दिखाया क्या निकाला है क्या नहीं निकाला है। एंड देन फिर मेरे को जब होश आया थोड़ा सा, तो फिर मिलने देना उन्होंने चालू करा अपने फ्रेंड्स वगैरह को, एक एक दो दो करके सब अंदर आ रहे थे। राइट। तो होश था मेरे को उस टाइम पे, बट आई वाज फीलिंग लाइक अ लिटिल बिट कोल्ड एंड थोड़ा सा पेन था लेफ्ट उसके अंदर, हैंड के अंदर, बिकॉज ऑफ ऑपरेशन प्रोसीजर्स। फिर भी मैं जब मिला दोस्तों से और सबसे, तो आई वाज द वन हु वाज टेलिंग कि नहीं हाँ मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया, देयर इज नथिंग टू वरी। वो सब जो मेरे को कंसोल करने आ रहे थे, आई वाज टेलिंग ईच एंड एवरीवन कि नहीं मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा हो गया है और एवरीथिंग इज ऑल राइट। ये सब चीजें बाद में मेरे को लोगों ने बताई कि यार हम लोग अंदर आए रहे थे तुम्हारे को कंसोल करने के लिए, और तू ऐसा बोल रहा था कि वो Yeah, here I would like to share one thing. मतलब जो इनके कलीग हैं, जो इनके साथ ऑफिस में काम करते हैं, and he like we are very very thankful to him कि इनका जब हुआ डायग्नोस और उसके बाद से उन्होंने पूरा का पूरा टेक केयर किया ऑफिस का. So like he was very much worried about his health. And जब इन्होंने उनको बोला कि विवेक I am very much okay, because इनको पता है कि वो बहुत ज्यादा वीक है हार्ट से, उन्होंने बोला कि मेरा ऑपरेशन एकदम ठीक हो गया है, तू चिंता मत करना. तो he started crying कि भाभी like ये मेरे को इनको जो चीज बोलनी चाहिए थी वो ये मुझे बोल रहे हैं. So like yeah. Thank you. दिस हैपेंड एंड देन उसके बाद में माय डॉक्टर केम टू चेक, और उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि दोनों पाँव आप उठा करके बताओ, एक एक करके पाँव उठाने के लिए बोला, पाँव उठाए, फिर देन शी टोल्ड मी कि अपना ये नी फोल्ड करो, ये एंकल का देखा, ये सब देखा, एंड शी वाज लुकिंग लिटिल सरप्राइज्ड, और मैं भी अपना आराम से मूव कर रहा था सारी ये चीजें. तो वो देख करके चली गई वापस से, और फिर उसके बाद में रात को कोई 11 बजे के करीब इनकी मीटिंग हुई डॉक्टर की और इनकी नीरू की वापस से. तो that time Neeru will explain now okay what happened. So what happened was कि वहाँ पे ICU में थे अतुल, and I was like staying in hospital only. उन्होंने मुझे बोला कि आप रूम में तो नहीं रह सकते हो, बट हम आपको गेस्ट रूम के अंदर आप सोफे पे सो जाओ, because I told कि मैं तो कहीं पे भी नहीं जाऊंगी, मुझे वहीं पे ही रहना है. तो फिर मैं डॉक्टर से रात को मिलने के लिए गई कि आप मुझे बताओ कि डॉक्टर आप विजिट करके आए क्या अतुल को, इज ही इन पेन, हाउ इज ही. तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम डॉक्टर से बात करके आपको बताते हैं. तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, एंड देन लकीली डॉक्टर केम, एंड देन आई आस्क्ड हर कि लाइक हाउ इज ही. तो उन्होंने बोला कि मैं अभी विजिट करके आई हूँ, एंड उन्होंने अपना पाँव भी उठा लिया. तो मैंने बोला इनके पाँव में कैसा है, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने अपना पाँव भी उठा लिया है. So that's a big surprise for me, क्योंकि उनकी femoral nerve मैंने remove करी है, तो मुझे तो शक हो रहा है मैंने कुछ छोड़ छाड़ तो नहीं दिया है, क्योंकि वो पाँव उठा ही नहीं सकते थे. So that was very like that is a miracle, and I really thank God for that. तो मैंने like फिर उन्होंने बोला ठीक है, पर मैं कल सुबह फिर से confirm करूंगी. So I really thought कि like yes, आप जो चीज सोचते हो, क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से था कि नहीं ऐसा नहीं होगा, एंड अतुल अपने पाँव पे चल के वापस से आएंगे थिएटर से बाहर. सो आई वाज जस्ट प्रेइंग दिस थिंग टू गॉड कि नहीं सब कुछ एकदम इजीली होगा. एंड देन व्हेन शी टोल्ड मी दिस वाज अ लाइक I cannot thank God enough. I cannot thank my family enough for that. Very good. Blessings, faith. Like the doctor, even the doctor was surprised. Yes. Yeah, right. I think it was आप सबका, आपकी खुद की विल पावर, फैमिली का सपोर्ट, एंड आपकी जो ब्लेसिंग्स, योर प्रेयर्स, योर फेथ, and of course doctors treatment, many things helped you in this. And so when you told me na ki aapka wo nerve nikalenge, and since then I was thinking ki how should I ask whether you are able to walk today or not. So yeah, and you just said it, so very happy to know that. Wonderful. मेरे को आज भी ऐसा बोल नहीं सकता है कि लाइक आई एम अ 3 टाइम सर्वाइवर और मेरे कोई इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है या कुछ हुआ है. आई वॉक नॉर्मली एंड आई डू ऑल माय थिंग्स नॉर्मली राइट नाउ. सही. तो फिर बस रिकवरी फेज हुआ, रिकवरी वाज ओके, एंड देन आई केम बैक ऑन 10th of May, व्हिच वाज लाइक वन डे बिफोर जब इनिशियल ऑपरेशन मेरा डिसाइडेड था, उसके एक दिन पहले हम लोग घर आ गए थे. तो रिकवरी वाज आल्सो फास्ट एंड इट वाज गुड. तो वो सब हुआ. लर्निंग मेरी ये रही इस फर्स्ट जर्नी के अंदर कि जब अपन फर्स्ट
टाइम कैंसर होता है, एंड व्हेन वी विन द बैटल देन वी थिंक कि हाँ हमने सब कुछ एक मतलब किला फतेह कर लिया है, या वी आर लाइक अ चाइल्ड हु हैज कम फर्स्ट इन द क्लास, और अब हमारे साथ में कुछ भी नहीं होने वाला है और सब चीजें। मोस्ट ऑफ द केसेस आई थिंक इट हैपेंस लाइक दैट ओनली। लेकिन सेल्डम डू वी नो कि नहीं हाँ ये कभी भी वापस से अपने को अटैक कर सकता है और कुछ चीज हो सकती है, वो हम कभी भी सोचते नहीं है। एंड द सेम थिंग हैपेंड विद अस आल्सो। जब सेकंड मेरा रिलैप्स हुआ था तो उस टाइम पे इट वाज अ बिगर शॉक देन द फर्स्ट टाइम कि ये इतना जल्दी वापस से क्यों हो गया है, या क्यों मतलब हाउ कुड इट हैपन अगेन सो सून। जब मेरी ऑपरेशन एकदम अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक हुआ था, आई वाज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, तो फिर ये वापस से क्यों हुआ? Okay. Yeah. So it was 9 months after the first thing. Oh. Yeah. तो यार आई थिंक लाइक इन जापान जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद में इन द सीटी स्कैन और एमआरआई अगर आपके पास में कोई ट्रेसेस नहीं है कैंसर के, तो दे डोंट डू द पोस्ट ऑपरेटिव कीमो और रेडिएशन। सो दैट इज व्हाट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज। तो उसके बाद में क्योंकि ये एग्रेसिव डिजीज है सार्कोमा जो है, तो दैट्स व्हाई इट रीअकर्ड टू मी। और रिकरेंस जो हुआ था वो दैट आल्सो हैपेंड ऑन 3 लेवल्स, 3 जगह पे हुआ था। इट वाज लाइक नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन, नियर द डायफ्राम एंड L1। तो 3 जगह पे हुआ था, लेकिन तीनों जगह इट वाज लाइक एडजेसेंट, तो पास पास में थे, छोटे छोटे 3 ट्यूमर्स थे। It was like one was 2 centimeters, one was 1.8, one was another like some 2 centimeters or something like that. तो 3 जगह पे वापस से रिकरेंस हो गया था। और ये आपका इस बार रिकरेंस 4th स्टेज था क्या? Recurrence, no, recurrence was small tumors, so it wasn't like classified as a 3rd stage or a 4th stage, but it was a recurrence, so there was like always a chance that it could migrate to some other part, or metastasis कहीं पे भी हो सकता है, और वो सारी चीजें थी। तो ये भी इंटरेस्टिंग हुआ। ये मतलब सेकंड टाइम आल्सो इट हैपेंड लाइक दिस ओनली कि मेरे को एकदम से पता नहीं पड़ा। मेरा जो था 1 फरवरी को रेगुलर चेकअप था, रेगुलर चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने बोला कि हाँ रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आ गई, एवरीथिंग इज फाइन। वी केम बैक। अगले दिन मैं ऑफिस गया था, तो ऑफिस में मेरे को फोन आया हॉस्पिटल से कि नो वी आर सस्पेक्टिंग समथिंग, सो यू हैव टू गो फॉर पेट स्कैन ऑन 8th of February, तो यू हैव टू कम बैक ऑन 8th of February। और 8th of February coincidentally it is our wedding anniversary, तो ठीक है जो होना है होगा, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो वी मेड अप अ माइंड कि हाँ हम सेलिब्रेट तो वैसे के वैसे ही करेंगे और सब कुछ अपना नॉर्मल रखेंगे। वी डिड नॉट टेल एनीवन कि रेकरेंस हो गया है, क्योंकि वापस से सबको चिंता होगी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेट अस सी द रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। राइट। तो 8 Feb को गए हॉस्पिटल में पेट स्कैन हुआ, वी वर वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डॉक्टर की रिजल्ट आएगा, उसके बाद में हम लोग जाएंगे, इसका रिपोर्ट आएगी तब। In the meantime, we were receiving the calls from India, from Japan, happy anniversary, और ये सब आ रहे थे फोन्स वगैरह। Okay. But we did not let anyone know कि भाई हम हॉस्पिटल में हैं अभी। और we made the food at home, घर से खाना लेके गए थे, वहीं पे बाहर रेस्टोरेंट में बैठे, थोड़ी ड्रिजल भी थी, तो पिकनिक के जैसा माहौल था। एक तरफ टेंशन था, एक तरफ पिकनिक थी, तो मतलब दोनों तरह की चीजें चल रही थी। Yeah. We try to find happiness or relaxation in small things. So remember जब हम कीमो के लिए जाते थे कैलकाटा में TMC, तो कीमो तो पूरे दिन चलता है, तो हम घर से खाना बना के ले जाते थे, और कीमो के बीच में जो सारी फॉर्मेलिटी होती है बिफोर कीमो स्टार्ट्स यू हैव 3-4 hours, तो हम गार्डन में जाके बैठेंगे नीचे, और वहीं पे हम बोलते हैं हर 15 दिन में हमारी पिकनिक होती है हॉस्पिटल में। Exactly. Yeah. Right. तो यही कि what the thought was कि हाँ life is short, eat the dessert first। ये माइंडसेट आप रखोगे तो ठीक है, लाइफ चलती रहेगी बढ़िया। लाइफ इज शॉर्ट, ईट द डेजर्ट फर्स्ट, दैट इज व्हाट आई वांट टू। Okay. Yeah. And also one or two things that I would like to say is you do what you can do and God will do what you cannot do. Wow, this is very well said. Yes. And this we have practically like felt in our journey. We have learned it and we have like felt it in our journey throughout, not only in the disease time but also like in our lives. We have felt that
you do what you can do, nothing else you can do, right? And you don't wait for the result, and God will do the rest. Yeah. Right. So that was the thing. And then also I thought that, okay, once I've come out like winner from this battle, so why can't I do it again? Whatever may come, we will go through it, and we will be like winning over it. Wow. तो ये थॉट्स आ रहे थे. तो लर्निंग यही है कि मन को आप जैसा समझाओ वैसा समझ जाता है मन. फर्स्ट टाइम पे भी ये हुआ कि मन को जैसा समझाया था कि हाँ इट हैज नॉट टू एंड सो फास्ट, अभी मेरे को कई चीजें करने की, तो मन वैसे ही समझा और आगे चीजें वैसे ही चलती रही. Right. और सेकंड जर्नी जब चालू होने वाली थी, पता नहीं था क्या है क्या नहीं है, ये 3 जगह पे रेकरेंस है, तो भी उसके पहले ही मन को ऐसे समझाया कि नहीं ठीक है, लाइफ इज शॉर्ट, ईट द डेजर्ट फर्स्ट, जो आप कर सकते हो करो, बाकी सब भगवान करेगा. तो एक मन में आपको मिलती रहती है, प्रेरणा मिलती रहती है, एंड हिम्मत बनती रहती है. True. And that is where we say, many, in my journey, I realized it very late that self-healing and the positive thoughts, positive energy, remaining hopeful, how it helps. And मुझे काफी लोगों ने बाद में बोला था, in last stage, many people guided me with this, कि how our thoughts, our behavior, what we read, कैसे हम बात करते हैं, how it attracts positive energy around us. And in fact, the famous healer Louise Hay, who is a cancer survivor herself, she has written so many books and programs on heal your body, and it works Yes. wonderfully. So I think that is what helped you a lot, because you were always optimistic, hopeful, had faith in spirituality, had faith in doctors and the medical system. It does help wonderfully. Yeah. Yes, temple. Yeah. So उसके बाद में फिर डॉक्टर से मिले तो उन्होंने बताया कि 3 जगह पे है ये, और जो अभी लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, सबसे पहले कीमो ट्राई करेंगे. तो दे डिसाइडेड कि हाँ कीमो की 6 साइकिल होंगी. दे डिसाइडेड ऑन द मेडिसिन, स्केड्यूल डिसाइड हुआ. तो 3 कीमो के बाद में इन लोगों ने वापस से स्कैन करा, सीटी स्कैन. तो सीटी स्कैन में पता पड़ा कि द ड्रग इज नॉट लाइक इफेक्टिव इन माय केस. सरकोमा के अंदर वैसे भी जो कीमोथेरेपी है वो बोलते हैं कम काम करती है. तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपके कीमो काम नहीं कर रही है, And it increased, size increased. और जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है. तो नाउ वी हैव टू थिंक अगेन. तो उन्होंने बोला कि नाउ वी विल थिंक कि आइदर वी गो विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ कीमो, और वी गो विद रेडिएशन, और वी गो विद ऑपरेशन. तो ये हम लोग पैनल में ही डिसाइड कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिसाइड आवरसेल्व्स. तो पैनल के अंदर सब तरह के डॉक्टर्स आएंगे, देन वी विल डिसाइड. तो उनका पैनल बैठने वाला था 2 हफ्ते के अंदर. तो वी हैड टू वेट फॉर 2 वीक्स. 2 वीक वेट करने के बाद में उनके पैनल में डिसीजन हुआ कि नहीं, भी दे विल गो विथ रेडिएशन. तो उस टाइम पे हमने पूछा कि नहीं, केमो का आप दूसरी मेडिसिन क्यों नहीं कर रहे हो ट्राई, या मतलब उससे क्यों नहीं है इस तरह का. तो they said कि नहीं, कीमो के अंदर जो होता है वो this was also learning for me, and as a layman also I don't know how many people know about it or not, कि कीमो जो है वो सबसे पहले they start with the strongest drug in the cancer, and if it is not working then there are very less chances कि आप second ड्रग ट्राई करोगे तो उससे आपको कुछ इफेक्ट होगा. Until or unless it is a combination of 2 drugs which may be like in the testing phase or something like that, which they can try on you. तो बिकॉज इट वॉज एग्रेसिव कैंसर, तो उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, कीमो नहीं, इसके लिए आपको रेडिएशन ही करना पड़ेगा. Right. तो रेडिएशन फिर डिसाइड हुआ. देन वी वेंट थ्रू रेडिएशन, 30 साइकिल्स, 60 ग्रेज इन 30 साइकिल्स. वो 6 महीने, वो 6 वीक्स तक वो चला. उसके बाद में द गुड थिंग वाज कि रेडिएशन होने के बाद में द साइज गॉट रिड्यूस्ड, और वो जो एक्टिविटी थी उसके अंदर, वो एक्टिविटी वाज आल्सो लाइक खत्म हो गई उसके अंदर एक्टिविटी. Okay. And it started reducing. तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम हम आपको दे चुके हैं जितना रेडिएशन देना था, now we'll wait and watch. तो इस तरह से हुआ. बट इस बीच के अंदर जो हमारी लर्निंग चल रही थी, वो चल रही थी कि अब ये सेकंड टाइम हो गया है, तो हाउ वी कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ केमोथेरेपी एंड रेडिएशन. Right. तो उसके लिए नीरू इज ऑलवेज लाइक अ लर्नर, एंड वी ऑल आर लाइक लर्नर्स इन आवर फैमिली. तो इसने अपना गूगल पे सर्च करना चालू करा. So now she will share that how we started our nutrition journey. Oh, I was waiting to listen to this part where the lifestyle changes and the transformation started. Please.
Yeah. So the thing is, first जब हमने करा तो we were always like living the life. हम लोग सब like organic food चाहिए, brown sugar चाहिए, and like we were living we were eating very healthy food since so many years. So that was a big shock for me कि अतुल को ये हुआ है, because he also himself he is very health conscious. But फिर ठीक है, हो गया फर्स्ट फेज निकल गया and he got operated. And then फिर जब again second time हुआ तो that was a again it was a bigger shock कि हम लोग काफी हेल्दीली रह रहे थे. But yes, we will खाना वाना like ठीक है, शुगर भी जा रहा था, because nobody told us कि आप ये नहीं खा सकते. Even like if you are eating the quality food, you can have it. That's what we learned in the first stage. लेकिन फिर जब दोबारा इनको like recurrence हुआ तो then I thought कि नहीं, there is something which we are lacking. So I was following Luke since long, but Luke Coutinho. बट फिर जब अतुल को उन्होंने बोला कि कीमो करेंगे तो मुझे था कि लाइक कीमो के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो हमको अब न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, एंड देयर शुड बी समथिंग व्हिच वी शुड डू नाउ. तो मैंने ऐसे लाइक मैंने उनको फेसबुक पे मैसेज कर दिया कि लाइक my husband is going through all these things and he's a cancer survivor for first time but recurrence hai, so like I would like I would like to consult with you. So मुझे नहीं पता था कि मुझे मैसेज आएगा या रिप्लाई आएगा या नहीं, बिकॉज ही इज अ लाइक सेलिब्रिटी लाइक न्यूट्रिशनिस्ट. बट उनका मेरे पास उनकी टीम से मैसेज आ गया कि yes you can consult him and this and that. So that was like very big relief for me. Then we got his consultation और उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी काफी अच्छे से अपना लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, आप योगा करते हो, आप स्पिरिचुअल उसमें हो, एंड यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग ऑर्गेनिक एंड यू आर अवेयर. So maybe you will need only 3 months of and फिर मैंने उनको बोला कि क्योंकि कीमो हो रही है तो आप मुझे उसके लिए मुझे न्यूट्रिशन चाहिए. So then we followed him and then अतुल, मेरे को नहीं पता था कि अतुल इस चीज के लिए मानेंगे या नहीं, बिकॉज उनको लगता है, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो मानेंगे या नहीं. तो फिर then I asked him कि हम खाली एक कंसल्ट करते हैं, you talk to him, if you find him okay then we'll go with this program, because that was a very expensive program. Like अगर ऐसा सोचे, बिकॉज हमने कभी ऐसे न्यूट्रिशनल या डाइटिशियन के लिए सोचा नहीं था जिंदगी में. तो देन ही टॉक टू हिम एंड देन ही वाज कन्विंस्ड कि हाँ ठीक है हम करते हैं. एंड लाइक दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन आवर पार्ट कि हमने एडवाइस ली एंड वी फॉलोड हिम, क्योंकि आपके पास में एक मेंटर होता है. हालांकि हम सब जानते हैं कि क्या सही लाइफस्टाइल है और क्या हम कर सकते हैं, हमें बहुत सारा गूगल से और इंटरनेट से मैसेज मिलता है और हम इंफॉर्मेशन होती है, बट still at this time you need a mentor, you need a nutritionist जो आपको properly time to time guide कर सके, आपको follow कर सके और आपको check कर सके आप कहाँ पे गलत हो. So we followed his program और उन्होंने हमें like lifestyle अतुल की change करवाई, like एक set pattern में करवा दिया. What we were doing irregularly we started doing regularly कि आपको सुबह coconut waters coconut ऑयल से ये करना है, आपका माउथ स्विश करना है. देन सिंपल थिंग्स कि आपको इतने ही ड्राई फ्रूट्स खाने हैं और आपको फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को मिक्स नहीं करना है. ये सब लाइक देयर वर डिफरेंट थिंग्स व्हिच ओनली न्यूट्रिशनिस्ट कैन से. आपको फ्रूट और इन सबको लाइक आपके जो ग्रेन्स हैं उनको मिक्स नहीं करना. यू हैव टू गो ग्लूटेन फ्री, यू हैव टू गो शुगर फ्री, यू हैव टू गो डेयरी फ्री. ये सारी चीजें उन्होंने हमको करवाई. तो ये सारे लाइफस्टाइल्स हमने चेंज किए. एंड कीमो के जो आफ्टर इफेक्ट्स थे उसके लिए उन्होंने हमको डिटॉक्स डाइट्स दी, जैसे रागी ज्यादा यूज करने के लिए बोला. लाइक देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच दे वर चेकिंग एंड आई हैड टू प्रिपेयर द फूड 3 times a day. आई हैव टू सेंड देम द फोटोज कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है, क्या इंग्रेडिएंट लिया है. सो 3 times a day I was like sending them the message at the end of the day. And लकीली लाइक हमें जो उनकी जो असिस्टेंट मिली, लाइक हमें जो उनकी हेड न्यूट्रिशनिस्ट मिली स्नेहा गाला, वो इतनी अच्छी थी कि लाइक शी कुड, मतलब वो 1 सेकंड में पहचान जाती थी कि आज तुमने प्रोटीन का इतना पोर्शन कम दिया है इनको, वेयर इज द प्रोटीन, व्हाई हैव यू कंबाइंड द लाइक फ्रूट एंड ग्रेन, ये सब ठीक नहीं है. और अतुल को भी जैसे जब कीमो हो रही थी तो ही यूज्ड टू फील लाइक कभी डिजी हो रहा है, तो सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक कैसे काम करेगी, हाउ मच ब्रीदिंग यू शुड डू. एंड डॉक्टर्स जो थे उन्होंने बताया कि आप ये सप्लीमेंट्स ले लो. सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प अस वेरी मच. एंड ही could go through radiation and chemo very smoothly.
मतलब he was driving by himself, he was going for chemo, he was coming back, he was going to office, while after taking radiation he was going to office and coming back. So touch wood, like he was very much healthier, and सारे के सारे इनके कीमो के इफेक्ट्स और रेडिएशन के इफेक्ट्स भी पूरे के पूरे एकदम मतलब they were very very nil effects. like उनकी बॉडी पे कोई काला निशान नहीं आया, बाल थोड़े उड़ गए थे, बट दे like as soon as the like एक कुछ टाइम के बाद में वो सब effects कम होने शुरू हो गए. So till now we are following that diet only, and we can share the diet like later. अभी तो इतना टाइम नहीं है अपने पास बात करने के लिए, but yes, these things do matter. It matters a lot. In fact, integrative oncology approach is what we call it. So finding a mix of medical treatment plus onco nutrition plus yoga and other physical exercise, whatever you're able to do based on the type of cancer and treatment and surgery. Very important, helps a lot. In fact, I have met many survivors, or the Sue Molinda example I was sharing, she could live for 10 years on 4th stage because she was doing all of these things. So I remember when I met her in US first time, she was like, I'll take you to juice shop. और हम लोग गए, it was outside USC hospital in Los Angeles, and what we had, it was haldi ka smoothie tha wo, like it was pure turmeric smoothie, and I was like, oh my god, itna haldi to maine aaj tak nahi piya, but it was delicious, plus it was super healthy. So that is the mission of us as Zenonco also, that promoting integrative oncology, because we have seen so many people getting recovered from it, and minimizing side effects is very important. जैसे कि आपने बताया अतुल जी के side effects बहुत ही कम थे या नहीं थे, because it's important कि आप दवाई तो कीमो ले रहे हैं, लेकिन to manage those side effects, to have a good quality of life, you should have an onco nutritionist who is there to guide you. कि आपको, we all hear from other people on different groups, maybe Facebook, maybe WhatsApp, okay, oh, you're also having wheatgrass, I'll also have it. But no, you one diet plan जो अतुल जी के लिए है, वो शायद किसी और पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी बॉडी, उनके बॉडी के हिसाब से, उनके टाइप ऑफ कैंसर, हिज एज, हिज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एवरीथिंग इज एज पर हिज नीड्स. So what work on one might not work on another. So it's important कि आप अपना personalized plan program लें अपने nutritionist को मिलके. So very important thing you shared. Thank you. I would like to add here one more point. कि information is available on the net. A lot of information is there, but the point is information changes nothing. Inspiration does. Yeah. So inspiration comes from mentors. So we should seek mentors. If we don't have a mentor, then just following the information from the net will not help, as you said, rightly said. Yeah. It may work on you, it may not work on you, because you have got a lot of other side things. Maybe you have got high BP, or you have got, like in my case, I had one kidney removed. So if I follow a diet from the net, I will maybe miss something. You will, yeah. Could my kidney or something else. So it is always better for us to have a mentor, and just not follow the information, get the inspiration from the mentor. Yeah, right. Do your research well and then follow professional advice. Yeah. And one more thing, like it's not that you have to go for it lifelong. Once you are like on your path, like 3 months, 6 months, 1 year, then you like they themselves say, okay, now you can save yourself, now you can save your life yourself. So that's what happened to us. अभी हम लोग अपने आप से कर रहे हैं, like yes, we consulted तो हम लोग like we are following, like हम लोग time to time अलग अलग mentors से हम लोग consult करते रहते हैं. So that's a like big learning for us. Like very. In fact, one of the other example, if you see India versus US, in US there are much more cancer patients, like patients getting diagnosed with cancer. The rate is much higher than what it is in India. But if you see survivor expectancy, life expectancy, it is more in US than in India. वहाँ पे लोग ज़्यादा survive करते हैं क्योंकि quality of life अच्छी है, क्योंकि they always, most of them take integrative approach. Vegan options, organic options are very easily available, and if you want to have healthy food and tasty as well at the same time, you can easily have it. And there are so many integrative centers also who guide you, okay, how this nutraceuticals is going to help you, and then so many other treatment.
And as you rightly said, mentor is very important. So even in our journey of Lovell's Cancer and Zenonco.io, we started this with when I met Dr. Michael Lerner in US, who is now 82-year-old, and he is doing wonderful work in the field of cancer from last 50 years. So उनका 50 साल का research है cancer के ऊपर कि what be it breathing or yoga, there are 100+ healing therapies, be it your intermittent fasting or any other diet, plus thousands of research papers, how it helps and why you should have it, what type of patient should have it, be it breast cancer or colon cancer, and so many other things. So he always believed in integrative oncology approach, and that is the inspiration which we all always draw from him, and that's the direction of path which we got from him. So very right said that mentor is very important in life. Yeah. Yes, you are doing a great job, Dimple, with this on this platform. Thank you. Yeah. So in this, this was like my second part of the journey, the second battle, and this we won over it with the guidance and mentorship of Luke and following the proper nutrition and everything. So my radiation got finished in 2018 July, and after that, like, this thought was coming in our mind, like, okay, this has happened twice and we are following now this diet and all those things, but now we should also look towards other alternative treatments which could like completely remove this thing and permanently. So we were trying to seek some help from somewhere कि कहीं से कोई help आए, कहीं से कोई information मिले, कोई experience हो लोगों को कि जिन्होंने कुछ follow करा हो, जिससे कि हम लोग उस चीज को try कर सकें कि इस चीज को पूरा तरह से हटाना, क्योंकि I did not want like कि आप third time वापस से हो. Nobody wants it actually. Right. I mean, of course, yeah. तो वही बोलते हैं कि जहाँ पे आप जहाँ चाहे वहाँ पे रहा है, तो सोच रहे थे इसके बारे में. तो वन ऑफ माय फ्रेंड हु हैज शिफ्टेड टू इंडिया लाइक लॉन्ग टाइम बैक, 8-10 साल पहले जिन्होंने शिफ्ट कर लिया था, उनको जापान से वो गोवा शिफ्ट हो गए थे. तो उनकी वाइफ को भी कैंसर हुआ था. शी हैड दिस थिंग एनल कैंसर था उनको. तो उनका शी हैड अ वेरी लाइक 4th स्टेज के करीब था उनका. शी गॉट ट्रीटमेंट इन इंडिया इन बॉम्बे. उनका ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन हुआ, कीमोथेरेपी हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, एंड उनका केस मतलब ऑलमोस्ट बिगड़ गया था. And she was not able to like stool or urine pass करने के अंदर both the channels were like mixed up. The wall between them was dilapidated. So she was in gross pain, and उसके बाद में उनका कुछ treatment लग नहीं रहा था. And she could not even stand up by her own. तो उनको 2 जने उठा करके ले जा सकते हैं, ऐसी उनकी situation थी, जो मेरे friend ने बताया बाद में. And then he took her to this Anand Kunj, जो कोल्हापुर में एक center है. That is like it is called a urine therapy center. उसमें urine therapy के बेस पे वो करवाते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है. तो he told me कि you should try there, because मैं जब अपनी वाइफ को लेके गया तो 1 हफ्ते के अंदर तो she stood up on her own feet, और मैं वहाँ पे 1 महीना रहा, और 1 महीने के बाद में जब हम लोग घर आए उसके बाद में for 5 or 6 years she is now cancer free. Oh my God. Okay. तो I was like amazed and I was also surprised कि ऐसी भी कोई चीज हो सकती है क्या. तो मैंने पूछा कि वहाँ पे क्या करवाते हैं, क्या नहीं करवाते हैं. तो he told me briefly कि वहाँ पे आपको फास्टिंग करवाते हैं, and fasting you have to do with your self urine and they will give you cow urine, और आपका जो वेट है उसके हिसाब से आपको फास्टिंग करवाएंगे. तो I was like around 70-72. तो उन्होंने बोला आपको 7 दिन फास्टिंग करनी पड़ेगी. तो मैंने तो फास्टिंग कभी करी नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता मैं फास्टिंग करूंगा. तो I was like skeptical कि मैं जाऊं नहीं जाऊं, क्या करें क्या नहीं करें. बट फिर वही हुआ कि हाँ, वी बोथ टॉक्ड इट आउट कि हाँ अपने को चलना है, वी शुड ट्राई, डेफिनेटली ट्राई, कि भी कोई नई चीज है और कोई इतना अपना कन्विक्शन से बता रहा है कि नहीं हमारे को इतना फायदा हुआ है, तो एटलीस्ट वी शुड गो एंड सी कि भी क्या है. मे बी वी आर नॉट एबल टू टेक यूरिन, सेल्फ यूरिन हम थेरेपी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट वी शुड गो देयर एंड सी व्हाट इट इज. तो हम लोग गए वहां पे, एंड आई स्टिल लाइक till today I thank God for showing us this path and for us to give us like so much of courage to go and try it out there. क्योंकि जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे जाकर के हमने देखा तो it was not just like a urine therapy center. वो urine therapy center तो था ही, but it was like a holistic learning या holistic living का जो एक पैटर्न होता है, जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, आप वो बोल सकते हो उसको. It was like a whole this thing कि आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा था.
और वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो दे आर लाइक ब्रदर्स, 2 ब्रदर्स हैं वो रन करते हैं इसको। तो वहाँ पे वो आपकी हिच भी निकाल देते हैं कि आपको कैसे सेल्फ यूरिन लेना है, क्या नहीं लेना है। तो आई ट्राइड दैट, वो मेरे को वर्क भी करा। वहाँ पे हम लोग 10 दिन रहे, 7 दिन मैंने फास्टिंग करी, फिर 8वें दिन मैंने फास्ट अपना तोड़ा। फिर अगेन आफ्टर दैट 2 days लीवर डिटॉक्स करवाया था उन्होंने, तो 2 दिन वापस से जूस के ऊपर फास्टिंग थी। तो आउट ऑफ 10 days आई डिड 9 days फास्टिंग, और मेरे को पता भी नहीं पड़ा, एफर्टलेस था एकदम। और उसके बाद में आई थिंक आई रिड्यूस्ड 7 or 8 kilos in those 10 days, and then I maintained like around 65 kilos or so until my third this thing, जो सेकंड मेरी सर्जरी तब तक मैंने वो मेंटेन करा। और वहाँ पे जो है वो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, मतलब उसमें वहाँ पे ये था कि आई लर्न मोर डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन लाइफ कैसी होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ फास्टिंग क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का क्या इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर। दे टीच ऑल दीज थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल वे और बाय थ्योरीज ऑल्सो, लाइक दे हैव लेक्चर्स देयर। शाम को 2 घंटे का वो लेक्चर होता है, उसके अंदर मतलब इट्स अ वीडियो प्रेजेंटेशन नॉट अ लेक्चर। तो उसके अंदर वो लोग बताते हैं कि क्या रीजन क्या है, दे टेल इट विद द रीजन कि इसका आपको कैसे इफेक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है बॉडी के ऊपर। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग कि होलिस्टिक अप्रोच कैसा होता है आपकी लाइफ में, एंड हाउ यू हैव टू बी रेगुलर, एंड आपको किस तरह से आपकी लाइफ रेगुलेट करनी चाहिए जिससे कि आपको पूरा का पूरा उसका बेनिफिट मिले। तो देन दे वहां पे मैंने लर्न किया, जो मैंने आपको पहले एक दफे सर्कल में बताया था कि दे टोल्ड अस टू स्टॉप द 5 whites। जो 5 white हैं वो कैंसर के अंदर एकदम बैंड, जैसे कि वी शुड नॉट टेक, आई जस्ट रिपीटेड फॉर मे बी द पीपल हु हैव नॉट जॉइंड। तो 5 white उन्होंने बोला कि एक तो व्हाइट सॉल्ट जो है वो अपने काम में लेना चाहिए, वी शुड यूज द रॉक सॉल्ट, जो पिंक सॉल्ट बोलते हैं अपन, सेंधा नमक, वो काम में लेना चाहिए। व्हाइट शुगर इज टोटली बैंड। उसका रीजन बताया क्योंकि बोले शुगर जो है वो निकलती है अपना शुगर केन से। शुगर केन का कलर अगर आप जूस का देखोगे तो इट इज ब्राउन और ब्लैक। टू मेक इट व्हाइट यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ केमिकल्स। तो आप केमिकल्स जहाँ यूज कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, तो सारे केमिकल्स आपके पेट में जा रहे हैं। तो यू डोंट हैव टू यूज व्हाइट शुगर एट ऑल। देन यू डोंट हैव टू यूज व्हीट या मैदा है जो भी व्हाइट उससे है वो, तो वो चीज आपको यूज नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपको व्हाइट राइस यूज नहीं करना है, यू हैव टू यूज राइस, देन यू यूज द अनप्रोसेस्ड राइस, अनपॉलिश्ड राइस आप यूज करो। और राइस के बाद में फिफ्थ थिंग इज द डेयरी। तो डेयरी का जो प्रोडक्ट है वो आपको काम में नहीं लेना। इफ यू हैव टू यूज देन यूज द A2 गाय का जो होता है दूध और घी, वो आप काम में ले सकते, वो भी एक लिमिटेड काम में लेना है। तो ये 5 white हैं वो उस टाइम से फिर हम लोगों ने बंद करे। पहले हम मॉडरेट क्वांटिटी में कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे, लेकिन वहां पे जाकर के लर्न करा कि क्यों है, रीजन के साथ में पता पड़ा, तो देन वी गॉट कन्विंस्ड कि हाँ ये चीजें अपनी ऐसी हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो अपना ऑयल है, ऑयल भी आपको प्रोसेस्ड जो तेल होता है वो काम में नहीं लेना चाहिए। रिफाइंड ऑयल जो होता है वो दैट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, वो किसी के लिए भी हो, इन जनरल ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर कैंसर। तो यू हैव टू यूज द कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, आप वो काम में लो। और एक ही ऑयल जो है वो आपको एक ही तरह का ऑयल हमेशा काम में नहीं लेना चाहिए, यू शुड कीप ऑन स्विचिंग इट। एक दो महीने आपने कभी ग्राउंडनट ऑयल ले लिया, कभी आपने दूसरा ले लिया, सनफ्लावर ऑयल ले लिया। तो ऑल दोस थिंग्स वी लर्न देयर। और ये सब लर्न करने के साथ साथ में वहां पे उन्होंने जो पंचभूत का होता है, पंचभूत इज लाइक जो 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर है अपने, उसका अपन बैलेंस अपनी बॉडी के अंदर और उसका क्या रिलेशनशिप है, दे ऑल्सो टॉट अस देयर कि आप कैसे अपने पंचभूत को आप बैलेंस कर सकते हो बाय हैविंग दिस अर्थिंग। अर्थिंग से आपको आपका अर्थ का एलिमेंट मिलता है, देन प्राणायाम से आपको एयर एलिमेंट मिलता है, एंड देन बाय मेडिटेशन यू हैव दिस ईथर। ये सारी चीजें, वाटर ट्रीटमेंट से आपको वाटर एलिमेंट मिलता है। तो हाउ टू बैलेंस ऑल दोज थिंग्स एंड हाउ टू फील योर बॉडी, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेरे को जो सीखने में आई वो है कि आप योर बॉडी विल टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। तो कोई भी डिजीज जो है वो मैनिफेस्ट आपकी काफी लेट होती है बाहर, बॉडी के बाहर, लेकिन बॉडी के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट लाइक 2-3 महीने या 5-6 महीने पहले ही वो हलचल होना चालू हो जाती है। इट मैनिफेस्ट क्वाइट लेट इन द फॉर्म विच वी सी इट फ्रॉम आवर आइज। तो अगर आप अपनी बॉडी को फील कर सकते हो और आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना न्यूट्रिशन रखते हो तो देन इट हेल्प्स अ लॉट। तो ये चीज वहां पे काफी लर्न करने को। I would like to add one thing which like I also learned one thing like over there अतुल के हिसाब से, कि उन्होंने बोला कि फास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, प्लस लाइट फूड। लाइक अगर अपन एकदम सिंपल अगर कोई चीज करना चाहें कि हमें अभी
हम किसी मेंटर को नहीं मिल रहे हैं, या हम अपनी बॉडी को हम लोग कैसे स्टार्ट करें अपनी लाइफ को, एंड व्हाई शुड वी डू दैट. सो उन्होंने बोला कि कैंसर, आपको अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है तो आप इम्यूनिटी रिच फूड्स खाओ, प्लस आपको अपनी बॉडी डाइजेशन के अंदर बहुत एनर्जी जाती है हमारी, सो यू हैव टू सेव दैट एनर्जी टू फाइट द कैंसर सेल्स. सो लाइक एकदम सिंपल चीज है कि आप अपनी एनर्जी को बचाओ ताकि आप कैंसर सेल से फाइट कर सको. अपनी एनर्जी को गुलाब जामुन और केक और पेस्ट्री ये सब डाइजेस्ट करने में मत लगाओ, क्योंकि वो एनर्जी हमें चाहिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए. सो वो मुझे बहुत ही लाइक एकदम इजीली जो है आपके दिमाग में घुस जाता है, और आपको फिर अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि हम क्यों कर रहे हैं ये चीज. केक, लाइक एवरीबडी लाइक्स स्वीट्स, एवरीबडी लाइक्स लाइक हम सबको क्रेविंग होती है इस तरह के फूड की. लेकिन द थिंग इज कि हम अगर ये सोचेंगे कि हमें अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं कैंसर को फाइट करने के लिए, तो वो बहुत इजी पाथ हो जाता है. राइट. वहाँ पे और भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह सिखाते हैं, तो रिलैक्सेशन टेक्निक सीखी वहाँ पे कि कैसे आप रिलैक्स कर सकते हो. अलग अलग तरह के मेडिटेशंस थे. देन आई लर्न EFT देयर, दैट इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट. वहाँ पे ये होपोनोपो जो टेक्निक है वो सिखाई. तो उन सब चीजों से उनको प्रैक्टिस करके यू कैन फील द इफेक्ट, मतलब योरसेल्फ कि हाँ कैसे आपका हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है. और आप once you get the results then ठीक है, आप उसके बाद में उसको स्टॉप भी कर सकते हो. if you want to continue you can continue also. तो ये पूरा जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है या होलिस्टिक लाइफस्टाइल है, ये मैंने वहाँ पे आनंद कुंज में जाके सीखा. मतलब प्रैक्टिकली जब आप सीखते हो तो इट इज मच मोर बेटर देन व्हाट यू रीड ऑन द इंटरनेट. तो that is what my experience was in my after my second this thing. Wow, okay. It's very very good information you shared about Anand Kunj. Thank you for sharing that. Yeah. So yeah, do we have time? Is it okay if I continue? Yeah, it's already 6:30, but I think we can continue for some more time and then complete the entire journey. Okay, Yeah, sure. Definitely. Yeah, sorry, like it went. No problem. It's the good information you are sharing. Thank you. Yeah. तो उसके बाद में वी वर फॉलोइंग आनंद कुंज का, मैं आकर के फिर फॉलो कर रहा था. देन वी वेंट इन अगस्त 2018 और वहाँ पे हम लोग 10 दिन रह करके आए थे. वी फॉलोड द कोर्स कंप्लीटली. फिर आने के बाद मैं प्रॉपर्ली अपना सारा फॉलो कर रहा था. अगेन आई वेंट टू इंडिया इन जनवरी में वापस से हम लोग 7 दिन के लिए वहाँ पे गए, जस्ट टू वापस से रिवाइज करने के लिए बोल दीजिए या जो भी है, सीखने के लिए वापस से. तो वापस से एक रीइटरेट हो जाता है कि हाँ अपने को इस तरह से करना है, ये फॉलो करना है, क्यों जरूरी है. तो आई वॉज प्लानिंग कि भी हाँ मैं रेगुलर आऊंगा 6 महीने, हर 6 महीने में यहाँ पे आऊंगा ताकि इट इज लाइक रिजुविनेटिंग फॉर माई सेल्फ. तो वो कर रहा था. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वॉट एवर यू कैन से, जुलाई में जब मेरा रेगुलर चेकअप हुआ वापस से, CT स्कैन हुआ इन जुलाई 2019, I was diagnosed कि मेरा मेटास्टेसिस हो गया है, and that too it went to the lung. Okay. तो सार्कोमा में later on I found out from the Google कि भाई हाँ ये जो होता है मेटास्टेसिस, it is like more likely to go in the lungs. अब लंग्स में जाएगा तो ठीक है, लंग्स है. अगेन इट वाज शॉकिंग कि भी हाँ ठीक है लंग के अंदर हो गया है, क्या है क्या नहीं है. बट द पोजीशन इन विच इट वाज क्वाइट लाइक डिस्टर्बिंग. तो it was in the center of the heart, मतलब बीच के अंदर पोर्शन में था, and it was on the upper lobe. So if it is on the side, they say that they cut a part of the lung and उसके बाद में वो remove हो जाता है, तो it is all okay. But in my case it was like you have to remove the upper lobe completely. पर इस जर्नी में भी ये हुआ कि जो मैं जिस हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था last 2 times, there the doctors had a difference of opinion. My main doctor, she said कि नहीं, we will go for chemotherapy first. And when we went to the chemotherapist, and he told me no, you should go for surgery first. And then we went to the surgeon, the lung surgeon. He said no, you should go for chemotherapy. And if it is reduced in chemotherapy, then we will go for operation. And if it doesn't reduce in chemotherapy, then we may not have a chance of operating it at all. Oh. तो
I was thinking कि ये तो we'll be pushed against the wall. अब हम आगे कोई हमारे पास में कोई चारा ही नहीं रहेगा तो क्या करें क्या नहीं करें. तो फिर I have some friends of my school friends and some other doctors in US who are oncologists. उन लोगों से बात करी तो two of them said कि नहीं आप कीमो के साथ जाओ and then whatever the doctor says he must be taking the best decision. But one of my school friend, he is also oncologist there. He told me कि नहीं कैंसर का ये है कि जब तक रिमूव कर सकते हो तो फर्स्ट गो फॉर ऑपरेशन. Right. एनी अदर चांस यू जस्ट गो फॉर ऑपरेशन. अगर वो डॉक्टर नहीं कर रहे हैं तो यू टेक सेकंड ओपिनियन. Yeah. जहाँ पे आपको करवाना है गो फॉर ऑपरेशन, दैट इज मस्ट. उसके बाद में देखेंगे जो भी होगा, देन वी विल सी, वी विल डिस्कस इट लेटर. Very important. ये सब जिद्दोजहद चलती रही एंड देन वी वर डिस्कसिंग विद द डॉक्टर्स. फिर मैं उनके पास में जो डायरेक्टर है जिनका रेफरेंस हमारे को पहले मिला था, आई वेंट टू हिम कि भाई ये ऐसा चल रहा है और आपके डॉक्टर्स इस तरह से देयर इज अ no consensus on this thing, so I want to have a second opinion, so you please write a letter of recommendation to me for the National Cancer Center in which we went in the first time. मैं कहा वहाँ पे ही वापस से कंसल्टेशन करेंगे and we'll go there. तो वहाँ पे मैंने रिकमेंडेशन लेटर लिखवाया. आई वेंट टू द लंग डॉक्टर, लंग ऑन्कोलॉजिस्ट. तो उन्होंने जाते ही बोला कि हाँ वी आर डूइंग दीज ऑपरेशंस रेगुलरली ओवर हियर एंड वी विल रिमूव इट एंड यू विल बी परफेक्टली ऑल राइट. आपकी जो आप बाद की लाइफ है वो भी सब नॉर्मल रहेगी, ना आपको कोई ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आने वाली है, ना आप कहीं पे. यू कैन गो टू हाई एल्टीट्यूड ऑल्सो, यू कैन डू स्काई डाइविंग, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो जैसा बोलते हैं ना कि भगवान मिल गए, तो वैसे it was like भगवान सामने थे. और I don't, maybe it is over. सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये बार बार में इस तरह से चीज बोल रहा है, लेकिन उस वक्त तो यही सहारा होता है देखा जाए तो. जो भी आपको उस वक्त यही चीजें आपको सपोर्ट करती है, मोटिवेट करती है, जो भी जिसमें भी आपको पॉजिटिविटी मिलती है. लाइक वाओ, थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग इट हैपन, थैंक यू गॉड फॉर कनेक्टिंग मी विद दिस, इट्स ऑल हिम डूइंग इट. सो दैट्स व्हाट हाउ वी टेक इट. या तो जो डॉक्टर थे वो पता नहीं मेरे को आए somehow I like his smile was so pleasant कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे कृष्णा सामने खड़े होकर के स्माइल कर रहे हैं, he's saying कि हाँ ये तो मैं रोज ही करता हूँ, you come and I'll do it for you. वाओ. मतलब इस तरह की एकदम से फीलिंग, और इस तरह का उनको देखते ही मेरे को आज भी मैं जब जाता हूँ रेगुलर चेकअप के लिए तो आई हैव द सेम फीलिंग कि नो कृष्णा इज चेकिंग मी. मतलब पता नहीं क्या, आई हैव दैट रैपर्ड विद दैट डॉक्टर नाउ. या तो ही सेड कि हाँ ठीक है आओ, वी विल डू इट, यू डोंट वरी एट ऑल. तो बस फिर ऑपरेशन की डेट डिसाइड हुई. इट वाज लाइक 19th of August 2019. तो लास्ट ईयर मेरा ऑपरेशन हुआ. ऑपरेशन के पहले जो एक महीना था जो हम लोग जिद्दोजहद में थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो उस टाइम पे वन मोर लर्निंग हैपेंड. वन ऑफ माय फ्रेंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू अनदर फ्रेंड ऑफ हिज who was doing a research and who is still doing a research on this effect of intermittent fasting on cancer. Very good. Yeah. तो उनका पूरा चल रहा है. तो I got in touch with him. उनसे मेरी बात हुई. तो जो होलिस्टिक लिविंग या जो इंटीग्रेटिव अपना अप्रोच है फॉर कैंसर हीलिंग, उसमें जो एडिशन हुआ मेरी लर्निंग में, जो कि मेरी थर्ड फाइट अगेंस्ट कैंसर में हुआ, ये हुआ कि he asked me माय जर्नी. मैंने उनको अपनी जर्नी पूरी बताई दो बार की क्या है क्या नहीं. तो ही सेड कि नो यू हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल, लेकिन आप जैसे जैसे आप स्टेप चढ़ते जा रहे हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इफ यू हैव टू रीच योर गोल, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करा है क्या नहीं करा है, सेकंड स्टेप में आपने क्या करा है क्या नहीं करा है, एंड व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक. तो दैट वाज अ वेरी वेरी बिग लर्निंग. उन्होंने मेरे को बोला कि फर्स्ट स्टेप में आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसे एडवाइज करते हैं कि आप कुछ भी खा सकते हो. आई वाज टेकिंग लाइक ब्राउन शुगर या गोड़िया वो खा रहे थे, दूध भी कभी ले रहे थे चाय में, बट इट वाज ऑर्गेनिक एंड ऑल दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट वी वर कंटिन्यूइंग विद दोस थिंग्स. इन द सेकंड जर्नी वी स्टार्टेड विद द न्यूट्रिशनिस्ट, और उसके बाद में हमने वो सारा पूरा फॉलो करा. फिर सेकंड जर्नी खत्म होने के बाद में वी वेंट ऑन दिस टोटली ग्लूटेन फ्री लिक्विड डाइट और फास्टिंग और यूरिन थेरेपी, और इसमें गए. लेकिन बोले कि अब आपने क्या नहीं करा है वो आपको करना जरूरी है. तो ही एडवाइज्ड अस कि आप एक दफे आपका जब ऑपरेशन है उसके पहले भी आपके पास में एक महीना है, या आई थिंक इट वाज 3 weeks और सो, ही टोल्ड अस टू स्टार्ट इमीडिएटली इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग आल्सो ही सेड कि जो लोग करते हैं नॉर्मल केसेस में जो होता है वो इट इज लाइक 8 hours ईटिंग विंडो होती है, 16 hours इज दैट, बट
you have to do 6 hours eating window and the rest you have to do the 18 hours fasting. So that I started immediately. वो स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, क्योंकि एज अ कैंसर पेशेंट आई वाज यूज्ड टू ईट डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे. सुबह से लेके शाम तक की मेरी डाइट एकदम फिक्स थी. नाउ टू स्क्वीज इट इन 6 hours, it was a very very big challenge. Then Again we consulted and then we got it tweaked कि हाँ 6 घंटे के अंदर कैसे करना है, क्या चीज स्किप करनी है, क्या चीज एक टाइम पे खानी है, क्या चीज 2 टाइम पे खानी है, तो ट्वीक करके वो करा. बट इट हैड अ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन माय बॉडी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी. एंड आई गॉट रेडी फॉर द ऑपरेशन. और ऑपरेशन के पहले इन द एंड ऑफ जुलाई आई डिड अ 3-day फास्टिंग आल्सो. 72 आवर्स की मैंने लिक्विड फास्टिंग करी. on water. It was only on water. That also under his guidance and under his advice कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो. Again, I would like to emphasize here कि कोई भी जना इस तरह से follow मत करना. It is just my experience that I am sharing. Exactly, yeah. अगर आप लोगों को सूट करता है किसी को तो then Doctor you की take advice. advice and then only do it. Right. But it is my journey and I am just sharing it. Yeah. तो इससे क्या हुआ कि मेरी बॉडी एकदम से स्ट्रांग हो गई एंड इट वाज मतलब आई वेंट वेरी स्ट्रांग इन द ऑपरेशन थिएटर दिस टाइम. और साथ में एक और जो चीज हुई वो ये हुई कि नीरू की एक फ्रेंड है यहाँ पे जापान में रहती है. शी इज लाइक अ प्राणिक हीलर. उनसे बात हुई तो शी केम टू द हॉस्पिटल व्हेन आई वाज एडमिटेड. आई वाज एडमिटेड ऑन अ फ्राइडे एंड माय ऑपरेशन वाज ऑन मंडे. तो फ्राइडे सैटरडे संडे शी केम 3 days रेगुलरली टू अस इन द हॉस्पिटल. और उन्होंने मेरी प्राणिक हीलिंग चालू करी. तो प्राणिक हीलिंग से भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आई एंड इट इज अ होल मतलब सब चीजों को कंबाइन करके ही जो इफेक्ट होता है वो हुआ. एंड देन दिस टाइम आल्सो आई वेंट टू द ऑपरेशन थिएटर विद पॉजिटिव माइंड ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट. और ऑपरेशन हुआ. इट वाज अ स्मॉल ऑपरेशन. द डॉक्टर हैज आल्सो कन्विंस्ड मी कि हाँ ठीक है लंग का एक पार्ट निकालना है. इट विल बी अ स्मॉल स्लिट ऑन द राइट हैंड साइड and it is a this thing camera guided जो operation होता है what you call it I don't know. मतलब it is a minimum invasive surgery जो होती है वो थी. I got a cut off here like 3 inches का कट आया left में and one hole and then it was completed in 2 or 3 hours. Recovery was also very fast. And within a week we came back home after the 3rd surgery. So yeah, that has been like my journey in three you can say I won 3 wars against cancer. And उसके बाद में इस बीच में भी काफी चीजें हुई. I could not cover all those things कि मैंने क्या क्या और करा क्या नहीं करा. I am a learner like from the beginning. I say one thing to my kids also कि you don't die when your heart stops beating. You die when you stop learning. Right. So that is what my mantra is, and I always try to learn more and more about the holistic living, meditation, and different approaches. So during this journey and also before that, I think what helped me in totality was reading a lot of books, inspirational books, motivational books, and like Louis Hay book, and then Magic and all those books I read. And also I did Art of Living course way back in 2007. So that was the beginning of my spiritual journey. So I learned from there. After that, in Jaipur there is this another school of thought that is called the Sahaj Marg. So you might be knowing about that. That is in Ramchandra. And that is right now it is quite famous in the name of heartfulness. Yes. And present Guruji is Daji. You must be knowing about. So there also I learned a lot of things, and that I learned around I think in 2013. At that time I did not know like what is going to happen to me. But there I learned like 2 important things in my life. That is, one is gratitude and the other is constant remembrance. Wow. So, and both now I feel goes hand in hand. Gratitude is towards like some superior, right? So it is say in the form of God or whatever you say. And remembrance, constant remembrance is like if you are in a state of gratitude always, you are constantly remembering him. So these 2 things, if we follow in life, then most of our
problems or things get automatically solved. So that is what I learned from there. I learned the meditation, and they have this cleaning technique. So later on, I learned that it is a part of pranic healing. And then in between my 3 journeys, cancer journeys, I did a course with SSY. SSY is Siddh Samadhi Yoga. And that is Rishi Prabhakaran ji is the Guruji. He doesn't have the body anymore. So I learned a lot of things there also. How we are responsible about our things and all those things. So, and then I also did the Isha Foundation course of inner engineering that was online available in between my journey. So it has been like a whole integrated approach, and all these things happened to me by the grace of God. That is what I can say, nothing else. Because if you don't have His blessings on you, you don't really like seek that path, or you don't walk on that path, or you don't even know about that path. So, and most important thing is like, if you are hungry, you never let your hunger die. Yeah, That is very, very important. And I believe that whoever is joining this call, they are all hungry. They are all hungry to live, hungry to learn, and they are hungry to change their circumstances. That is why they are here in this call, or in all our healing circles. Right. Because if that spirit is there, that spirit of hunger is there, then only you can achieve what you want to achieve. Yeah. And also, one more thing is there, that you set a goal, you achieve it, and every time you have to raise it higher. As in my case also, like, first step, I had set a goal, I achieved it. Then in the second stage, I had to raise it higher. If I would have not raised it higher, then I would have not achieved what I achieved. Third stage, again, the same thing happening. So if we can follow this thing, that we have to set a goal, achieve it anyhow, and then again set the bar higher, then I think we can definitely achieve whatever we want to achieve in our lives. So that is what my message is to everyone. Thank you. Wonderful message, and such a beautiful, beautiful journey. In fact, we have interacted a lot of times in previous Healing Circle talks as well, but never knew about your journey in this detail. And now that I heard it, it has been a roller coaster ride for you. And we all, हम लोगों ने सबने सुना इसको, और we were able to experience it, or could put ourselves in your place कि हाँ hospital में अभी ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर आप उस आश्रम में गए, वहाँ पे ऐसा हुआ. And I have seen your old picture, and now I see you a complete difference. I can see positive vibrations and shining bright, both of you. So can see क्योंकि it's बहुत ही deep journey रही है आपकी, and you are living it day in day night. Every time you are following it, be it spirituality or your diet, your lifestyle, and lots of blessings from your friends, family, doctors, and God's blessings जिन्होंने आपको इतना अच्छा रास्ता दिखाया है. And more importantly, you know what I personally believe, कि ये आप लोगों का जो conviction है, और आप लोगों को एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो support है, faith है इतना strong, उसी ने आपको ये पूरा रास्ता दिखाया है. Because you were always positive, you were always hopeful, you were able to achieve it not once but 3 times. And I'm sure बहुत लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला. And I can see comments overflowing. So and I'm sure बाकी लोग भी जब इसको देखेंगे, we'll upload this on YouTube and Facebook and website also. We'll do the article. Yeah, I'm sorry I could not follow the chat because I was too much. I am sorry I could not follow the chat because I was too much I was just traveling through the time. Yeah, definitely. Thank you for sharing his journey, and yes, thank you so much. So this was the only from my side as a caregiver, as you are saying, I don't consider myself as a caregiver. Caregiver is for me it is always Krishna. So for me I used to cry out my time when I was I had made it a point I will every day I will go to the temple. So that was my me time, that was my alone time, when
I used to go like on like walking. It is like 45 minutes from our home. तो every day मैं पैदल जाती थी और वो 45 minutes मेरे को जो करना होता था I used to do. मेरे वीक पॉइंट्स होते थे, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते थे, कृष्णा को जो बोलना है, घर को जो बोलना है. So that gave me a lot of strength. So you should take out some time for yourself in any way. And one more thing which I did was I was with him like each and everything. Like अगर डाइट चेंज हो रही है तो मेरी भी डाइट चेंज हो रही है, अगर हम यूरिन थेरेपी के लिए जा रहे हैं तो हम साथ में ही कर रहे हैं. Wow. So, like we did it like it was spontaneous. But when I go back, मुझे लगता है कि I was guided to do that because that gave him also strength and that gave me also strength to go through all this. I could experience like what he was going through. So that way, like we were together in that thing. So yeah, thank God to all these things. And yes, we were always positive by God's grace. And जो भी हमने like इतनी सारी चीजें करी है, सारे meditation like at every time हम लोग सारी चीजें कर रहे थे, but still it was coming back, right? So कभी कभी ऐसा लगता था कि इतना सब करने के बाद में भी हो रहा है, इतना सब करने के बाद में हो रहा है, but then like मुझे वो लगा कि ठीक है, हम लोग को नया रास्ता मिल भी रहा है. If it is coming back, we are going ahead also. So like let it be and take the as it is coming. So that is what हम लोग अभी उस स्टेज पे कि है कि take the life how it is coming. And मैं वही सोच रही थी. That's the biggest lesson for us. आपको 3 साल में 3 रिलैप्स हुए हैं, बट आज मैं आपको देखती हूँ तो ऐसे लगता ही नहीं है, नो फियर एब्सोल्युटली. एंड देन यार कि हमें पता है अब हमें क्या करना है. सो बीट कैंसर, बीट एनीथिंग एल्स, वी नो हाउ टू फाइट इट. सो या, and if Anushri and Aditya are comfortable, would love to hear a few words from them as well, because they have been a very important part of this journey. So parents को जब देखते हैं कि when they are going to the journey, obviously husband wife are always with each other, but बच्चों के लिए मन में जो डर होता है पेरेंट्स के लिए कि oh my god मेरे पापा को है ये और क्या होगा, and they are kids ultimately. Similarly, so it's hey guys. Yeah, so heads off to your parents and both of you as well, कि आप लोगों ने I'm sure पूरा support किया and जो strength दिखाई when you all were going through a crisis situation, I would say. So do you want to share anything in this journey? Just a minute, I'll just unmute. Yeah, please. Yeah. Yeah. Can't hear. आप अपने डैड को बोलिए कि वो अपना म्यूट पे रखिए और आप अपना अनम्यूट करिए. Okay, I think everyone is coming in the same screen. Great, that's better. Atulji, I'm asking you to unmute yourself. Yeah. Wonderful. Hello. Yeah, wonderful. Yeah. So for me, I think the journey was somehow a little different because I was in India most of the time. I was in my 11th and 12th grade when all of this happened. So I was away from the three of them for a long time and during the operations as well. So for me, it was sort of difficult in the sense that I had to make sure that I was also giving strength to my dadi because so I was living with my grandparents and I was trying to be strong in the sense that I didn't want them to think that I was going weak. So that we could all give strength to each other and not let that sort of worry come to Tokyo, I guess. So that they would all be strong and they would not at least worry about us. कि इन लोगों को कैसा है या ये लोग ठीक हैं क्या. तो we were all trying to be strong like that, but I think the three of them really were strong and they did everything really, I don't know, like bravely, and they managed to come out of it. And I feel like I
it was sort of nice that I wasn't here, because I feel like I wouldn't have been able to be that strong. But I'm glad that I was there after the operations to help, and to help mom and dad and Bhaiya and everyone to, in their journey and with Yeah. everything. So now, like mom and me, we have a nice time coming up with new innovations when it comes to food, especially because it's all gluten-free, oil-free, but we still try to make cakes and samosas and everything for dad so that he doesn't miss out on anything. Okay. And you all are able to follow the healthy lifestyle which your mom, dad are following? Yeah, so now we, Yes. earlier it was a bit like mom used to make different food for us, but now we all just eat the same thing. And it's not really that difficult. Like, obviously we have cakes when we want to, or we um, go out and eat sometimes, but at Yeah. home we're just eating the same thing. Yeah. And it's actually really healthy and nice. Yeah. It's very important that when a patient is eating something, and caregivers, we also eat the same food, because that उनको ऐसा नहीं लगे कि he is a patient and he has to eat all these things by himself, and rest everyone is eating like not healthy but maybe delicious. But Yes. I'm sure your mom knows that how to make now healthy and delicious as well at the same Yeah. time. So हम लोग काफी even with gluten free and vegan and so many healthy things, tasty things we can prepare with that. So yeah. So Aditya, did you have any fear when you were with dad when he was going through the treatment? What were you thinking? So when the initial diagnosis happened, I wasn't in Jaipur. I was in Delhi visiting a few friends, and so it was during Holi, and I didn't. I wasn't in contact with my parents during that time. So for me, it was a surprise, it was a surprise when I came back to Jaipur. But I thought that the timing for something like this to happen, if it was to happen, it worked out really well because I was coming to Japan anyway. And I had been in the US for 3 years before then. So for me, it didn't feel very real until the surgery. But even when the initial diagnosis happened, it felt like at least I can be there in the same space, in the same place. We won't be separated by distance. So for me, that was something that was very positive for me. And I remember like I didn't really have a very emotional reaction until the day of the surgery. So after the surgery was over and my dad came out of the operating room and I saw him after I reached home, and my mom was staying over in the hospital overnight. So I came back home alone and I was in the balcony, and that's when I let out a scream because I was like, yes, we did it. We finally, the surgery was successful. So that was the only real moment that I let out any real emotion. But I think just as Dad was saying earlier in the talk, it's good to let out the emotions that you're feeling periodically, because otherwise they can build up and sort of get suppressed inside you. So yeah, I think like it's important to manage emotions, and it's good to talk to a counselor as well, just to sort of manage through the expectation of the treatment and how you're feeling throughout the process. Definitely, very important. Thank you for sharing this, both of you. And we have a question from Preeti. So, Preeti, I am asking you to unmute yourself. Yeah, Preeti, can you unmute yourself? Yeah, you had some question, right? Yeah, can we take a wait? Yeah, can we take Sendha Namak? सेंधा नमक, यस, व्हाइट सॉल्ट की जगह आप रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक यूज कर सकते हैं. ओके ओके. Yeah. और ये यूरिन थेरापी का जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ पे होता है, वो एड्रेस मिल सकता है क्या? I can share in the WhatsApp group later on, so you can find out like whether it is good for you or not, and then you can decide. Okay, thank you very much. Right. मैं WhatsApp group का link भेज देती हूँ यहाँ पे. So those who are not there can join this group. Yeah, it's Integrative Oncology WhatsApp group. Great. So do we have any more questions? कुछ questions थे अतुल जी जो मैंने आपकी साइड से आंसर कर दिए.
I could not follow like the chat the whole time. I'm Yeah. sorry about it. And if anybody has any questions, maybe like they can ask it on our WhatsApp group. या डेफिनेटली एंड मैंने एक और लिंक शेयर किया था जायोपर का, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ. सो उसमें ऐसा है कि अगर आपको अपनी डाइट के इंग्रेडिएंट्स जानने हैं कि आपका अगर जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर 3rd स्टेज है और साथ में किडनी डिसऑर्डर भी है जस्ट एग्जांपल, और पेशेंट इज मॉडरेटली एक्टिव, सो व्हाट काइंड ऑफ treatment should be there, what kind of diet should be there. So I have just shared a link with you. You can fill this form and then you will receive the reports in a few hours. तो उसमें आपको एटलीस्ट बेसिक आइडिया मिल जाएगा what to avoid, what to have, and how much to have and all. If you want to connect, you can connect with me later. I can connect you with onco nutritionist. वो आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से आपको बताएंगी how much to have, प्रोटीन कितना है, कितने टाइम पे लेना है, and all of those things. It really helps a lot when you are going through the journey, and you can see Atulji and entire family following it very well. So thank you so much for sharing the journey, and it has been a wonderful experience listening to you. Hats off to Nirupama ji for your support, like a rock pillar strength to him, to the entire family, and your kids as well, who have been shown maturity and courage when you needed it the most. क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चों के सामने ब्रेकडाउन हो या फिर वो अपना डर बच्चों के सामने दिखाए, क्योंकि you are the protective arms for them. So amazing. So thank you so much. I am humbled and deeply touched hearing both of you. And that too, yesterday when I got to know that me and Atulji are from the same college, so he's my alum from MNIT Jaipur. Small world. So yeah, thank you Vikas ji, that onco nutritionist was able to help you. I just read the comments, so thank you so much for that. And yes, we all have gone through the journey of cancer. We have lost our loved ones. We are there. We, as in all of us, are there to support each other. Like Atulji and Nirupama ji are supporting others by sharing their journey, ताकि उनको जो चीजें help की है वो हम सबको help करे. And anything you need in this journey, you can anytime reach out to us. We are like your guide in the journey. So अगर कुछ हमें नहीं पता है तो हम पूछ के बताएंगे, but definitely all the queries will be always answered. Like all the prayers always get answered. So You're like a family here in the circle. So yeah, thank you so much, and I'm sure it's late night for you in Japan. So yeah, last thanks to everybody for joining today's circle. And next circle we are having with Dr. Anu Arora. And मुझे उनकी एक लाइन काफी अच्छी लगती है. उन्होंने बोला है, she believes in गिर पड़े, गिर कर उठे और उठ कर चले और चलते ही रहे. So Dr. Anu has been doing wonderful work in terms of early detection and prevention of cancer. She guides on what are the signs and symptoms and early detection techniques we can use at home, at hospital, so that we can avoid such incidences. And अगर जल्दी ही detect हो जाता है, so how can we know, like if cancer is detected early, the chances of cure are more. Cost of treatment is low. So how can we do that? So thank you, Dr. Anu, and we will be hearing to her in next Healing Circle Sunday at the same time, 5 p.m. Thank you so much, everyone.